ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀ ਰਹੀਆਂ, सिगरेट भी पी रही हैं जी। ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ असर होगा फिर। आजकल आप देखो छोटे छोटे बच्चों को इतना ज़्यादा सीवियर फॉर्म में कैंसर हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? अगर आपको ये चीज़ें पीनी ही हैं देन मेरे हिसाब से आपको प्रेगनेंसी पे जाना ही नहीं चाहिए। ज़्यादा बीमारियां बढ़ने का सबसे बड़ा कारण अगर फीमेल्स में है तो कॉस्मेटिक्स हैं। अच्छा। क्रीम, लिपस्टिक, इवन स्किन कैंसर्स भी इससे डेवलप हो रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर्स भी इससे डेवलप हो रहे हैं। और आप ये देखो कि ये मार्केट कैसे ग्रो ही करी जा रही है। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਸਕਿਨ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਕਿਨ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ? खाने का भी होगा सर और बाहर से लगाने का भी होगा, क्योंकि स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ। केमिकल है ये। ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ? ਆਲਟਰਨੇਟ ਕੀ ਨੇ? जैसे इंडिया में जिसके भी घुटने या हड्डियां दुखती है सबसे पहले कैल्शियम लेना शुरू कर जी। देते हैं। हार्ट अटैक होने में सबसे बड़ा रोल है कैल्शियम का। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਟ ਕੈਨ ਕਾਜ਼ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਐਸ ਵੈਲ। यस 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 यस। ਤਾਂ ਕਈ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ लगते हैं। सिंपल थायराइड की अगर हम बात करें, वेस्टर्न पैथी ले रहा है, दवाइयाँ खा रहा है, कितने सालों से खा रहा है? मतलब 10-10 20 साल लोग खा रहा है ना 20 साल। तो अब 20 साल वाले को अगर मैं 1.5 या 2 साल में ठीक कर दूंगी तो क्या फास्ट क्या है? ऑब्वियसली आयुर्वेद ही फास्ट होया फिर तो हम कैसे मतलब मरण तक जे बंदा दवाई ले रहा सवेरे उठ के खाली पेट ते 1.5-2 देखो ये जस्टिफाई कर गए डॉक्टर शारदा तुसी। अब आप देखिए कि ब्लड प्रेशर किसी को है, क्या ब्लड प्रेशर क्योर करती है एलोपैथिक? नहीं करती है। शुगर को क्योर करती है? नहीं करती है। थायराइड को क्योर करती है? नहीं करती है। और उल्टा ये बता दिया जाता है पेशेंट को दैट फॉर द होल ऑफ योर लाइफ। आयुर्वेद किवें डिफरेंट है फिर कि वो जड़ तो खत्म करता है बीमारी नूं? कि हमारी जो सक्सेस रेशो है कि पेशेंट दवाइयाँ खाना छोड़ देता है और ठीक रहता है, वो 80% से लेके 90% के बीच बीच में हम एग्जिस्ट करते हैं। हालांकि दुनिया के बहुत बड़े हॉस्पिटल्स भी 40 to 50% तक ही रीच बना पाते हैं। ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਅੱਜ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕੀਤੇ, ਪੋਡਕਾਸਟ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜੌਨਰਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲਿਸਟ ਤੋਂ ਔਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਪੋਰਟਸ ਤੱਕ ਹਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਡਕਾਸਟਰ ਹੈ ਸਟੀਵ, ਦ ਡਾਇਰੀ ਆਫ ਅ CEO ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਉਹਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ 33 ਰੂਲ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮਨ ਲਾਜ਼ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਚੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਚੰਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਟੀਚਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਟੈਪਸ ਲੈਂਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਐਜ਼ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰ, ਇੱਕ ਵਿਮਨ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਣਾਇਆ, ਬਟ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਸਟਵਰਦੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਪ ਉੱਥੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਸ਼ਾਰਦਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਮ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਲੋਕ ਬਤੌਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਲਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਆ,
ਸਕਸੈਸ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਫੰਡਾ ਆਫ ਸਕਸੈਸ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? सक्सेस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर मैं बात करूँ तो हार्ड वर्क होता है। देखिए, चाहे कहने में दुनिया जो मर्जी कहती रहे कि अब स्मार्ट वर्क चल पड़ा है, आप दिमाग से सोचिए, ऐसा नहीं। हार्ड वर्क अगर नहीं है तो कोई भी मॉडल कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। हार्ड वर्क, आपकी इंटेलिजेंस का भी हार्ड वर्क इसमें रहता है, आपको नॉलेज टाइम टू टाइम हमेशा अपडेट रहना पड़ता है। बिजनेस स्ट्रेटजीज़ के लिए बहुत अच्छे आपके प्रिंसिपल्स होने चाहिए, आप कंप्रोमाइज़ ना करो अपने प्रिंसिपल्स के साथ। अगर हम बात करें डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा की, तो देखिए, मैंने मेडिसिन्स की क्वालिटी में कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। रादर हमें बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आई कि इसका प्राइस बहुत कम है और आप इसको डबल प्राइस में दे सकते हैं पेशेंट्स को, आपको अच्छा प्रॉफिट गेन होगा। लेकिन हमारा हमेशा मोटिव ये रहा कि हमें बेस्ट चीज़ लेके आनी है ताकि पेशेंट ठीक हो, क्योंकि जो पैसे पेशेंट मुझे देके जा रहा है वो मेरी सारी टीम में भी सर्कुलेट होने हैं। लेकिन वो फ्लरिश देखिए तभी होते हैं जब जिसने मुझे पैसे दिए पहले वो ठीक होना चाहिए। आप समझे मेरी बात? ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੂਮਨ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ठीक होना चाहिए है, फिर वो पैसा फ्लरिश करूंगा। जी, हमारी प्रायोरिटी सबसे बड़ी यही रही है कि पेशेंट ठीक होना चाहिए। पेशेंट, और ये जितने हमारे पास डॉक्टर है, जितनी बड़ी हमारी टीम है, इवन अगर मेरे पर्सनल रिचुअल की भी बात करो तो मैं जब ऑफिस जाऊंगी तो मेरी फर्स्ट प्रेयर में यही आता है कि मेरे पास जितने पेशेंट आए वो सारे ठीक होकर जाएं। कि ਜਦੋਂ ਕੋਈ ठीक नहीं ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ डिसअपॉइंटमेंट ਹੁੰਦੀ है। हाँ, वो दुख होता है कि दुख ये भी होता है कि अगले का टाइम खराब हुआ, अगले के पैसे खराब हुए, पता नहीं बेचारों ने कैसे कैसे पैसे आके हमें दिए। लेकिन वो कंटिन्यूटी बेसिस पे रिसर्च भी साथ साथ में चलती रहती है कि ठीक नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। तो उसी चीज़ को हमने बहुत इतने सालों में जो एनालाइज़ किया, मेडिसिन्स की क्वालिटी देखिए, हम सिर्फ ओरल कंसल्टेशंस करते हैं। जैसे पेशेंट हमारे पास आया, हमने कंसल्ट किया और उनको हमने दवाइयाँ दी और उन्हीं दवाइयों से वो ठीक हुआ। लेकिन अगर आप इस चीज़ को वैसे देखें तो मार्केट में तो हज़ारों तरह की दवाइयाँ पड़ी हैं। फिर पेशेंट ने हमसे, हमारे पास आने से पहले भी तो सारी जगह खाई हैं, तो पेशेंट क्यों नहीं ठीक हुआ? तो वो कहीं ना कहीं हमारी क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सुपर स्ट्रॉन्ग क्वालिटी है। और हमारा जो R&D का डिपार्टमेंट है उसको स्पेशली मैं खुद लीड करती हूँ। काफ़ी मेडिसिन्स पे मैं रिसर्च करती रहती हूँ। 2-4 मेडिसिन्स मैंने पर्सनली खुद बनाई हैं और उसके रिजल्ट 100% हैं। ਤਾਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਵਰਸਸ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ। ਜੀ ਜੀ। ਕੀ ਆਫਟਰ ਕੋਵਿਡ ਆਯੁਰਵੇਦ ਹੁਣ ਓਵਰਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਐਲੋਪੈਥੀ ਨੂੰ? ऐसे अगर आप मेरी ओपिनियन समझें तो इसमें ऐसे ओवर पावर करने वाली बात नहीं है। मैं ये, मेरी पर्सनल ऐसी सोच है कि जितनी भी मेडिसिन्स की पैथीज़ हैं उनको हैंड टू हैंड एक साथ मिलके काम करना चाहिए। देखिए, हर डिपार्टमेंट की एक लिमिटेशन होती है। अब जो चीज़ एलोपैथिक कर सकती है, जैसे इमरजेंसी केयर कर सकती है, या क्रॉनिक कोई इस तरह का पेशेंट आ गया जिनको इमरजेंसी केयर और ऑपरेशंस की ज़रूरत है, लाइफ थ्रेटन कहीं ना कहीं पे चैलेंजेस आते हैं, तो वो बेस्ट करती है। और हमें उस चीज़ में बार बार जाना भी नहीं चाहिए कि नहीं नहीं अब पेशेंट एक बेड पे पड़ा है लास्ट टाइम पे, तो हम क्या बोलें कि हमारे पास आ जाओ, नहीं। लेकिन हाँ, अब कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं वो एक टाइम पे वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम पे वो, मुझे पर्सनली लगता है कि शायद वो अच्छा कर सकते हैं लेकिन क्यों नहीं कर रहे मुझे समझ नहीं आ रहा। अब आप देखिए कि ब्लड प्रेशर किसी को है, क्या ब्लड प्रेशर क्योर करती है एलोपैथिक? नहीं करती है। शुगर को क्योर करती है? नहीं करती है। थायराइड को क्योर करती है? नहीं करती है। गठिए को क्योर करती है? नहीं करती है। सोराइसिस या एक्जिमा को क्योर करती है? नहीं करती है। और उल्टा ये बता दिया जाता है पेशेंट को दैट फॉर द होल ऑफ योर लाइफ, आप जब तक जीवित हैं यू हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन मेडिकेशंस। लाइक आप सुबह से दवाइयाँ खाना शुरू कीजिए, रात तक खाइए, सालों खाते रहिए, 2-4-5 साल खाइए, उसके बाद नेक्स्ट बीमारी उसी से जनरेट हो जानी है। क्योंकि देखिए, WHO भी कहता है कि ये कुछ मेडिसिन्स इस तरह की हैं, अगर हम विदाउट डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शंस लेंगे और लाइफ लॉन्ग लेते रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं सेकेंड रेप्रिकॉशन बनेगी आपको और हेल्थ का मेजर इशू बनेगा। तो आयुर्वेद किवें डिफरेंट है फिर कि वो जड़ तो खत्म करता है बीमारी जी। को? अब आयुर्वेद पे हम इस चीज़ पे आते हैं कि आयुर्वेद उन चीज़ों से कैसे डिफरेंट है। सबसे पहले तो आयुर्वेद को थोड़ा सा ऐसे समझना पड़ेगा कि आयुर्वेद की जितनी दवाइयाँ बनती हैं वो मैक्सिमम जो है प्लांट बेस्ड होती हैं।
प्लांट बेस्ड होती हैं या कुछ जो हैं वो मिनरल बेस्ड होती हैं या कुछ में जैसे स्वर्ण भस्म या इस तरह की मेडिसिन्स वो हम मेटल्स भी यूज़ करते हैं। लेकिन वो सारी की सारी जो दवाइयों का बेस होता है बेसिकली वो आपकी हेल्थ को ख़राब कभी भी नहीं करेगा। मतलब अगर आप एक बीमारी पर्टिकुलर के लिए आप दवाई खा रहे हो तो ये कभी नहीं होगा कि आपको दूसरी बीमारी लगेगी। ठीक है। 5 साल में, 2 साल में, 4 साल में बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरी बात, हम डॉक्टर शारदा में क्या करते हैं, हम डॉक्टर शारदा में एक पर्टिकुलर बीमारी को ठीक करने के साथ साथ उसकी बॉडी के हर एक सिस्टम को, जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, हमारी बॉडी के इंटरनल जितने ऑर्गन से इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, हम सबका इलाज एक साथ करते हैं। हालांकि पेशेंट हमें यही बोल के आएगा, जब भी पेशेंट आएगा कि नहीं मेरा तो घुटना दुख रहा है, सिर्फ मुझे घुटने की दवाई दो, लेकिन घुटने के साथ साथ हमने 2 या 3 दवाइयाँ जो हमें लगता है कि अकॉर्डिंग टू सिस्टम वी हैव टू गिव टू द पेशेंट, तो वो हम साथ में देंगे। हालांकि कुछ पेशेंट इतने ओवर स्मार्ट भी कई बार प्ले कर जाते हैं कि उनको लगता है नहीं 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 हमारा पेट तो बिल्कुल ठीक है, वाई शी हैज़ गिवन दिस मेडिकेशन टू मी, तो वो स्किप कर जाते हैं। तो मुझे क्योंकि मुझे सिस्टम को क्लीन करना है ना। आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, क्या हमारा दिमाग डिफरेंट है? नहीं। क्या हमारा हार्ट डिफरेंट है? नहीं। ऑर्गन वाइज डिफरेंट है, लेकिन उसको चला तो एक सिस्टम रहा है ना। पूरा जो सिस्टम है बॉडी को चलाने का वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ब्रेन को पता है कि कब मैंने सिग्नल देना है, कब मैंने हाथ उठाना है, कब मैंने हाथ नीचे रखना है। हार्ट को पता है कि बिना रुके मैंने जो है वो हार्ट बीट को चलाए जाना है। लंग्स को पता है कि पर्सन बॉदर करे ना करे, लंग्स ने ब्रीथ करना है नहीं करना है, ठीक है। लेकिन ये सारा साइमल्टेनियसली एक टाइम पे एक ही पॉइंट पे हो रहा है। देन हु इज़ वॉचिंग होल ऑफ द सिस्टम? क्योंकि इसमें सिर्फ 2 या 4 ऑर्गन्स तो है नहीं, कंप्लीट सिस्टम इन्वॉल्व है। और यहाँ पे मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि पेशेंट मैक्सिमम सोच के जाते हैं नो 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 हमें बहुत बड़ी बीमारी होगी, हम स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे। सो आयुर्वेद जो है वो इटसेल्फ स्पेशलाइजेशन ही है, क्योंकि आयुर्वेद का जो भी अच्छा प्रैक्टिशनर, अच्छा डॉक्टर, अच्छा हॉस्पिटल जो है जब आपको दवाई देता है तो पूरे फेथ के साथ जाइए, उसमें आप जैसे वो बोलते हैं वैसे कीजिए। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, हमारे पास एक 10 लीटर का कैन है, उसमें कोई दिक्कत हो गई, मानो हमने चीनी रखी है, चीनी खराब होगी, तो आप क्या करेंगे? आप पहले वो पुरानी चीनी को फेंक देंगे, फिर साफ करेंगे उसको, फिर नई चीनी भरेंगे, ऐसे ही करेंगे। अब हम पुरानी चीनी के साथ नई चीनी तो नहीं मिक्स करेंगे। तो ये सेम सिस्टम है। जब हमारे शरीर के अंदर बीमारी है किसी भी फॉर्म में, लाइक फीकल वेस्ट मटेरियल है बॉडी के अंदर, म्यूकस, अनवांटेड म्यूकस है, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं जिसके कारण हमें गैस है, एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, इरिटेशन है, ईचिंग है, नोजिया हो रहा है। जब तक हम इंटरनल ट्रैक को क्लीन नहीं करेंगे, हाउ यू कैन थिंक कि कोई बीमारी ठीक हो जाएगी? हाँ, केमिकल मेडिसिन्स के साथ होती है, दैट्स व्हाट द मेडिकल वेस्टर्न पैथी दे आर डूइंग, दे आर जस्ट गिविंग केमिकल मेडिकेशंस, क्योंकि सारी सिंथेटिक और केमिकल बेस्ड मेडिकेशंस हैं। तो जब भी वो हम खाते हैं तो हमारे सिम्टम्स जो हैं वो स्प्रेस हो जाते हैं, दब जाते हैं। लाइक हमें गैस की प्रॉब्लम है, हमने अभी के अभी दवाई खा ली तो गैस जो है वो रिलीज हो गई, हमें लगा हम ठीक हो गए, लेकिन फिर 4 घंटे बाद फिर दोबारा रोज सवेरे उठ के खाली पेट डीएसआर हाँ, ले रहे हैं, दुनिया ले रही है। अब आप वो घातक है, वो खतरनाक हाँ है। हाँ बिल्कुल, हर एक चीज़ देखिए, अब इंडिया में वेस्टर्न मेडिकेशंस के ऊपर अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा कोई सख्त कानून तो नहीं बने हैं। हम कभी भी जाके मार्केट से डिस्प्रिन, पैरासीटामोल, ये वो सब कुछ खुद ही लेके हम इवन अपने बच्चों को भी देते हैं। आपने देखा होगा कि लिटरेसी रेट जो है इंडिया में किस लेवल का है। हमें एक बार पता चल जाए कि पैरासीटामोल इट्स गुड फॉर आवर किड्स, तो मेरे ख्याल से हर पढ़े लिखे लोग खुद ही जाके दे देते हैं कि वाई टू गिव कंसल्टेशन टू डॉक्टर, 200, 300, 500 रुपये क्यों दे रहे हैं? हम पीसीएम ला के सबसे पहले, और पढ़े लिखे लोग भी करते हैं ऐसा। पर आप ये देखिए कि क्या पीसीएम कितनी कंट्रीज में बैन नहीं है? बहुत सारी कंट्रीज में बैन है। अब वो बैन क्यों है? कहीं ना कहीं नुकसान कर रही है ना। मैं ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੀਗਾ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, 103 ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਸੀ ਔਰ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਦਵਾਈ, ਉੱਥੇ ਪੈਨਾਡੋਲ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਆਈਸ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਚੁਸਕੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਚੁਸਕੀ ਦੇਤੀ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਚੂਸਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦਾ ਬੁਖਾਰ ਫੀਵਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾ। ਮੈਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਇਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੋਤਲਾਂ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ,
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਡੋਲੋ ਜਾਂ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਜਾਂ ਕਰੋਸੀਨ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾ ਇੱਧਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਹੇ, आप नहीं करते। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੁਖਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ वो भी एक मित्र है, दोस्त है वो। जी देखिए, फीवर की अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा अगर हम देखें तो बहुत सारी डिफरेंट क्लासिफिकेशंस इसमें आती हैं। सारा बुखार एक टाइप का नहीं होता है, कुछ कुछ इसमें जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग फीवर्स भी माने जाते हैं। लेकिन वही है कि अगर लाइफ थ्रेटनिंग फीवर्स आते हैं देन यू हैव टू कंसल्ट विद द डॉक्टर, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे आप होम रेमेडीज़, इसीलिए मैं होम रेमेडीज़ कभी ज़्यादातर आपने देखा होगा मैं नहीं सुजेस्ट करती हूँ, क्योंकि होम रेमेडीज़ एक रेमेडी सारे लोगों के लिए असर नहीं करती है और उल्टा कई बार नुकसान भी हो जाता है। अब हल्दी एक पेशेंट के लिए ठीक हो सकती है, लेकिन दूसरा पेशेंट जो पित्त प्रकृति का है उसको हल्दी सूट नहीं करेगी, उसको ईचिंग होगी, बर्निंग होगी, या फिर उसके मुँह में कड़वापन आना शुरू हो जाएगा। इसलिए होम रेमेडीज़, इंटरनेट, सोशल मीडिया सारा भरा पड़ा है और मैं पर्सनली सुजेस्ट भी करती हूँ कि आप नहीं कीजिए अनटिल एंड अनलेस आप खुद को उस लेवल का समझते हैं, यू आर वेल एक्सपीरियंस्ड कि हाँ ये चीज़, कुछ चीज़ें नुकसान नहीं करती लेकिन 70% चीज़ें नुकसान कर जाती हैं। अब अगर हम फीवर की बात करें तो बहुत सारी डिफरेंट क्लासिफिकेशंस होती हैं, उसमें भी ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कौन सी टाइप का फीवर आया। लेकिन 60 से 70% जो फीवर आता है बॉडी में, वो बॉडी का अपना एक सर्टन मैकेनिज्म होता है कि हम बाहर के जितने भी बैक्टीरिया, वायरस है, शरीर अपनी रक्षा खुद करता है। तो उसका एक सर्टेन सिस्टम है कि जब भी बाहर से किसी भी वायरल अटैक होगा या इस तरह की कोई भी चीज़ होगी, आप देखेंगे सबसे पहले बॉडी का टेम्परेचर रेज्ड हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बॉडी अपने आप को रेडी करती है फाइट करने के लिए। बाहर से कोई भी आया, अब हमारे घर में कोई लड़ने आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी हमारे पास तलवार या कुछ भी डंडा या कुछ भी होगा, बॉडी एकदम से हीटअप मोड में आ जाती है कि हम इसको मार डालेंगे, या तो ये बचेगा या आज हम बचेंगे, मतलब हम फाइट एंड फ्लाइट वाले मोड में आ जाते हैं। सेम ऐसा ही बॉडी अंदर से करती है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे अब हम क्या करते हैं, हम इसको गलत सोच के जो भी है पीसीएम जाते हैं, हम पीसीएम लेके फटाफट से रिलैक्स होके बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, और फिर क्या है, आपने ऐसी दवाई खाई जिसने आपके इंटरनल सिस्टम को, लीवर को सबसे ज़्यादा डैमेज कर दिया उस टाइम पे, स्टमक को रिलैक्स्ड मोड में कर दिया। नो डाउट आपका टेम्परेचर डाउन चला गया, लेकिन वो चीज़ जो है वो 2-4 घंटों बाद फिर बुखार आएगा। बिल्कुल। और आप ऐसे 2 दिन खुद दवाई लेते रहोगे, तीसरे दिन डॉक्टर के पास पहुंचते हो। फिर जब डॉक्टर के पास जाते हो, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि 2 दिनों से आपने क्या किया होगा घर पे, कई बार पूछने या बताने की भी ज़रूरत नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, दे यूज़ टू गिव यू एंटीबायोटिक्स का सेट देते हैं, या तो आप वो खाएंगे या आप जो भी है वो सलाइन वगैरह उस टाइम पे इन्फ्यूज़ करेंगे, ड्रिप वगैरह लगवा लेंगे, ठीक है। लेकिन हमें ये समझना है बेसिकली कि जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम हो गया, थोड़ा सा कफ कोल्ड हो गया, जब सीज़न चेंज होता है या जब मौसम बदलता है, थोड़ा बुखार आ जाता है, उस टाइम पे ये चीज़ें जो है बॉडी जो है सर्टेनली वर्क करती है कि शरीर के अंदर जितने भी बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स या फिर इस तरह का अनवांटेड मोर्बिड मटेरियल जो है उसको हम बाहर निकालें, और बॉडी रेडी होती है नेक्स्ट सीज़न के लिए कि विंटर से, सर्दियों के मौसम से हमने एकदम स्विच किया गर्मी में। बॉडी ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ मौसम 'ਚ तब्दीली आ रही है और ਅਸੀਂ जी, इसीलिए आयुर्वेद में तो ऋतुओं का बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है कि बहुत 6 तरह की ऋतुएं होती हैं, बेसिकली सीजन्स होते हैं, और हर ऋतु के अकॉर्डिंग बॉडी का जो खान पान है वो डिफरेंट हो जाता है, लाइफस्टाइल डिफरेंट करना चाहिए हमें बेसिकली। अगर हम उस चीज़ को एग्जैक्टली फॉलो करते हैं तो हमें किसी भी तरह की मेडिसिन की बहुत ज़्यादा कोई अर्जेंसी नहीं पड़ती लाइफ में। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਰਦਾ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹਰਬਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam, YouTube ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡੱਬੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਮਪਾਇਰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ them, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਲੋਪੈਥੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਤੇ ਹਰਬਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? देखिए, आयुर्वेद तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, एंड मुझे लगता है कि बहुत अच्छे जो इंटरनेशनल लेवल पे जो अच्छे फिजिशियन या डॉक्टर हैं उनका मेरे ही जो ओपिनियन है वैसा ही वो सोचते होंगे। इट्स अ वे बियॉन्ड पैथी टू ट्रीट द ह्यूमन बीइंग वेदर दे आर सफरिंग विद एनी सॉर्ट ऑफ क्रॉनिक डिजीज और नॉट।
ये लाइफस्टाइल को अच्छा रखने के लिए भी आयुर्वेद है, और आपको कोई गंभीर बीमारी हो गई है तो उसका इलाज भी इस चीज़ में है। लेकिन हर्बल प्रोडक्ट की तरफ अगर हम आ जाते हैं, इट्स टोटली जस्ट मतलब अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। देखिए, मैंने अपनी लाइफ में आज तक कोई सप्लीमेंट नहीं खाए किसी भी तरह के, कोई मैंने प्रोडक्ट नहीं यूज़ किया, क्योंकि मुझे पता है, ना ही मैंने अपने बच्चों को दिए कि कोई मल्टीविटामिन या कुछ ऐसा लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं, जरूरत ही नहीं है, नहीं, उसकी एक्चुअली ज़रूरत नहीं है। और उसके लिए यू हैव टू डेवलप अ लॉट ऑफ इंटेलिजेंस बिहाइंड दैट, कि वो कैसे ग्रो कैसे होती हैं चीज़ें। अगर आज के टाइम में हम बात करें कि मल्टीविटामिन हमें चाहिए, आपको पता है हमारे खेतों में जो हम अनाज वगैरह उगाते हैं या कुछ भी उगा रहे हैं, वही कितना पेस्टिसाइड्स के साथ भरा पड़ा है। तो आपने मल्टीविटामिन या ऐसी हर्ब्स कहाँ से उगा ली? हर्बल फार्म्स, ऑथेंटिक वेरिफिकेशंस वी डोंट हैव ऑन दैट पॉइंट ऑफ कि हम बोलें कि नहीं यहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं। दूसरी बात ये कि हर्बल प्रोडक्ट जो है, फिर भी अगर कोई लेना भी चाहता है एज अ सप्लीमेंट, तो वो एक अलग चीज़ है। वो सप्लीमेंट आपकी बीमारी को क्योर नहीं करते, ठीक है, वो थोड़े टाइम के लिए आपको मे बी दे प्रोवाइड यू एनर्जी, आपका थोड़ा सा विजन क्लियर होता है, आप चुस्ती फुर्ती बॉडी में आती है, आपको लगता है कि नहीं नाउ आई एम फीलिंग गुड। एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना भी हो जाता है। जैसे बहुत सारा साइकोलॉजिकल फिनोमिना ये चलता है, जैसे इंडिया में जिसके भी घुटने या हड्डियां दुखती है, सबसे पहले कैल्शियम लेना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ा मिथ है, लोग करते हैं। और ऐसा एक बच्चे से लेके एक बुजुर्ग तक हर किसी को पता है कि नहीं मेरी हड्डियां दुख रही हैं, सबसे पहले कैल्शियम 2-3 महीने खा के ही आता है। अब कैल्शियम का सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन आपको पता है क्या है? हार्ट अटैक होने में सबसे बड़ा रोल है कैल्शियम का, क्योंकि हमारी जो आर्टरीज हैं वो कैल्सीफाइड हो जाती है। मतलब बिना डॉक्टर ਦੀ प्रिस्क्रिप्शन ਤੋਂ, ਬਿਨਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈ ਆ ਕੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨਸ ਆ ਡੱਬੇ ਆਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੁੰਦਾ, तो तुसी कह रहे हो कि इट कैन कॉज हार्ट अटैक एज वेल। यस, इसमें कैल्सिफिकेशंस होती हैं, आर्टरीज ब्लॉक्ड होती हैं, चैनल ब्लॉक होते हैं, कई बार हार्ट अटैक का सबसे मेजर रीजन माना जाता है। ਜਿਹੜੀ ਹਰਬਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਬਲ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਲਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਗੋਲੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੀਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਲੀਵਰ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਗੁੱਡ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗਾ ਰੱਖੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਆ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਲੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ, एक्चुअल आयुर्वेद जेड़ा ग्रंथा च लिखा आयुर्वेद है और जो ये हो रहा है जी, ये अलग अलग है। यस एग्जैक्टली, ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। ये दोनों चीज़ों का एक दूसरे के साथ एज सच कोई कोरिलेशन नहीं है, ठीक है। आयुर्वेद में नो डाउट होम रेमेडीज़ कुछ ऐसी बताई गई हैं मौसम के अनुसार। आपने सुना होगा पुराने टाइम में हमारे यहाँ गाँव में भी लोग करते थे, जिदा आप पंजाब की गल कर लीए तो पंजाब च भी ये चीज़ां पहले बहुत ज़्यादा चलदियां सी। जदों भी गर्मियां का मौसम आंदा सी, लू चलदी सी, आपां की कहंदे सी कि सत्तू जौं दे आटे दा सत्तू बना लो, उहनूं पी लो, या लस्सी च थोड़ा मिठी बना लो या उदा बना लो, वो चीज़ पी लो। वो चीज़ फिर भी एक हर्बल कैटेगरी में आ जाती है एंड दैट्स गुड फॉर ईच एंड एवरीवन, उसको कोई भी ले सकता है, वो मौसम के अकॉर्डिंग हो गया। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਰਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੰਜੀਰੀ, ਪਿੰਨੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ मौसम 'ਚ ये हाँ ऐसी चीज़ें, अगर हम इस चीज़ को हर्बल कैटेगरी में रखते हैं देन दिस इज़ गुड फॉर ईच एंड एवरीवन, क्योंकि ये सेट एक प्रोटोकॉल है कि विंटर्स आएंगी तो बॉडी का मैकेनिज्म जो है वो थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद वो डिफरेंट हो जाता है। तो उस टाइम पे वो ऐसी चीज़ें हैवी बसा वाली चीज़ें, फैट वाली चीज़ें या हैवी मल्टीविटामिन्स या सारी चीज़ों को ईजिली डाइजेस्ट कर लेता है। लेकिन जब गर्मियाँ आती हैं तो हम स्विच करते हैं बिल्कुल लाइट फूड की तरफ, तो वो हर्बल है। अब इस हर्बल चीज़ को बच्चे यूज़ करें, बुज़ुर्ग यूज़ करें, कोई भी करे तो वो हेल्दी ही रहेंगे, किसी को कुछ नहीं होगा। लेकिन अब आप ये बोल रहे हो कि इसी चीज़ को मैंने एक डब्बे में बंद कर दिया, टैबलेट की फॉर्म में बना दिया, पाउडर की फॉर्म में बना दिया, तो आप खुद समझदार हो। आप पहले सबसे पहले ये सोचो कि अगर हमने किसी ऐसी चीज़ को डब्बे में बंद कर दिया तो क्या हमने प्रिजर्वेटिव नहीं यूज़ किए? वो बिना उसके कैसे जीवित रहेगी? उसकी सेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ती है, तो वो कैसे बढ़ती है? हमारे घर में तो लस्सी दो दिनों के बाद ख़राब होना शुरू हो जाती है खुली, या पंजीरी को खुला छोड़ दो आप 4-5 दिन फंगस लग जाएगी, तो वो फिर 2 महीने 4 महीने 6 महीने आई डोंट नो कि कितना उनका सर्कल चलता है, मतलब उनकी लाइफ
एक्सपेंसिव किस लेवल पे होती है, कुछ कुछ की 6 महीने भी होती है। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਮੈਂ ਨਾ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, जी ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ। ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਤੇ ਲਿਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਆਯੁਰਵੇਦ, ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਪੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕਿਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ 'ਚ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਠੀਆ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। जी ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਵੱਲ ਲੋਕ ਭੱਜਦੇ ਆ। जी ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੋਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕ? नहीं सर, आजकल के टाइम में अगर मैं एलोपैथिक की भी बात करूँ ना, तो एलोपैथिक ने भी बहुत अच्छी अच्छी इन्वेंशंस कर ली हैं, लेकिन वो बताएं या नहीं बताएं, इट्स अप टू देम। वेस्टर्न पैथीज खुद डिक्लेयर कर रही हैं कि ऑटो इम्यून डिजीजेज जो हैं वो रिवर्स हो रही हैं और होती हैं। इवन WHO इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर रहा है कि काफ़ी हद तक जितनी भी ऑटो इम्यून मतलब क्रॉनिक बीमारियां समझ लो, गठिया हो गया, अस्थमा हो गया, या फिर चमड़ी के रोग हो गए, काफ़ी हद तक पहले तो ये बिल्कुल कहा जाता था कि ये तो इलाज बीमारियां हैं कि आपको खानी पड़ेगी दवाई, लेकिन अब वो खुद कहते हैं कि नहीं, ये चीज़ जो है वो रिवर्स हो रही है, ठीक हो रही है, और काफ़ी पेशेंट्स की दवाइयाँ जो है वो बंद हो जाती हैं। मतलब थोड़ा टाइम जो भी उनको एक टाइम बताया जाता है, अब आगे डॉक्टर्स उस चीज को बता पा रहे हैं नहीं बता पा रहे हैं, इट्स अप टू देम बेसिकली। ठीक है, और हम अगर इसमें आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद के तो कभी आप हमारे क्लिनिक में, मैं कहती हूँ हमारे तो इतने क्लिनिक है, आप किसी में भी चले जाना, सरप्राइज विजिट देना, आप थोड़ी देर आधा पौना घंटा बैठ के जो रिपीट पेशेंट आएंगे ना, मुझे पूछने की बजाय आप उनसे ऐसे फॉर्मल बात करके पूछना कि कितना टाइम हो गया आपको इस बीमारी के साथ, और आपने यहाँ से कितने दिनों में दवाई खाई, आपको कितना फर्क पड़ा। आपको एक्चुअली जो हमारी वैल्यू है वो रिपीट पेशेंट से सरप्राइजिंगली पता चलेगी। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ है? नहीं सर, मैक्सिमम जो हमारी जो एक डिजीज को क्योर करने की रेशो है, ठीक करने की जो रेशो है 70 से 80% है। और मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहती, बहुत बड़े बड़े अच्छे लेवल के मल्टी स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल्स हैं पंजाब में या इवन नॉर्थ इंडिया में, बहुत बड़े बड़े लेवल पे जहाँ पे फॉरेन से भी लोग आते हैं ट्रीटमेंट करने, उनकी 40 से 50 के बीच बीच में है। ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਈਏ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਜ਼ਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਮਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਜ਼ਮਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੰਪ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇਨਹੇਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਥਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨੇਟਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਪਹਿਲਾਂ। जेनेटिक बेसिकली देखिए इसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, नो डाउट जेनेटिक भी होता है। जैसे पेरेंट्स को या फोर फादर्स को किसी को है तो कई बार ये हिस्ट्री देखने को मिलती है कि आगे आने वाली पीढ़ी में भी ऐसी बीमारियां कुछ हैं जो ट्रांसफ़र हो जाती हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी, अगर हम इसमें ऐसे तो ये बहुत बड़े डीप सब्जेक्ट्स होते हैं बेसिकली, जिस पे हम घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन इसकी सिंपल क्लासिफिकेशंस मैं आपको बता देती हूँ। जब नए नए बच्चे पैदा होते हैं ना, न्यूनेटल बेबीज़, तो उनमें ये अस्थमा डेवलप हो जाता है कई बार, क्योंकि आजकल सी सेक्शंस ज़्यादातर होते हैं, तो कई बार प्री मेच्योर डिलीवरीज हो जाती हैं, बच्चों के ऑर्गन्स लंग्स पूरी तरह से बिल्डअप नहीं होते। ठीक है, तो उनको हम बेसिकली थोड़े टाइम के लिए मतलब उस तरह की एड्स देते रहते हैं ताकि दे गेट ब्रीदिंग प्रॉपरली। तो कई बार उसके कारण भी बच्चा जो है वो थोड़े टाइम के लिए डिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है, कई बार इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है और अचानक से वेदर चेंज आ गया और वेदर शिफ्टिंग के कारण जो है बच्चे को अटैक आ गया किसी चीज़ का, तो कुछ अस्थमा बच्चों में इस तरह के पाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये ज़्यादातर बीमारी देखने को मिलती है जो बुजुर्ग लोग हो जाते हैं, 60-70 से ऊपर जो होते हैं, उनके लंग्स नेचुरली डिजनरेटिव फेज़ में बॉडी चली जाती है, तो उनको सांस की दिक्कत जो है वो ज़्यादा आती है। लेकिन जो आपने अभी क्वेश्चन किया कि जैसे मौसम पंजाब में पराली का सीज़न स्पेसिफिक आ जाता है, तो उसका सबसे बड़ा जो कारण एनवायरनमेंट भी कहीं ना कहीं है, क्योंकि पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा कम हो गए। अब आप तो विजिट करते ही होंगे गांव में जाके, आप देखिए कि जिदा आप कह दें हैं कि
ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਟਾਂ 'ਚ ਪੇੜ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ। এনवायरमेंट ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਸਮੋਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ भी दिक्कत आ जाती है। और अगर हम जनरली बात करें कि बाकी लोगों को, इसको बोलते हैं बेसिकली एलर्जिक एस्थमा कह देते हैं, या एलर्जिक साइनोसाइटिस रेनाइटिस, इस तरह का डेफिनेशन हम लोग दे देते हैं मेडिकल फील्ड में। लेकिन जब ऐसे लोग जो हैं, अब फिर वो लोग क्या करते हैं कि जिसको भी ऐसे हो गया, एक सिंपल आम आदमी की भी बात करें कि उसका नाक बहना शुरू हो गया या उसको सांस की दिक्कत आ गई, खुद ही चले जाएंगे मेडिकल स्टोर से सिट्राजिन लेंगे, खा लेंगे 2-4 दिन, और उनको लगेगा नाउ दे आर वेल एंड डूइंग ईच एंड एवरीथिंग परफेक्टली। तो वो थोड़े टाइम के लिए डिपेंडेंसी 1-2 साल 4 साल ऐसे चलाते रहते हैं। फिर जब सिट्राजिन काम करना बंद कर देती है, देन दे यूज टू गो टू डॉक्टर कि अब हम डॉक्टर के पास जाएंगे। अब डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको उस टाइम पे क्या देगा, वही इनहेलर्स, आपकी डिपेंडेंसी उन चीज़ों पे शुरू हो जाती है। लेकिन यंग एज में अगर आपको ये बीमारी हो रही है, अगर आप मार्केट से कुछ भी दवाई खुद लेके खा रहे हो, इट मीन्स यू आर जस्ट स्लोइंग डाउन योर इंटरनल सिस्टम। आप लिवर को ये मैसेज दे रहे हो कि नहीं नहीं, कोई भी मेरे शरीर के साथ दिक्कत हुई मुझे मत बताना। बिल्कुल सिंपल बात यह है कि हमारे घर में हमने कोई हाउस हेल्पर सर्वेंट रखा है, तो हम उसको ये कह दें कि नहीं नहीं जो मर्जी होता रहे मुझे मत बताना। हम अपनी बॉडी को चीट कर रहे हैं उस तरह से, तो ये धीरे धीरे करके ये बीमारी डेवलप होती ਤਾਂ है। ਫਿਰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, जी जी ਫਿਰ ਲੋਕ ਜੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਹੇਲਰਸ ਔਰ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਂਟੀ ਐਲਰਜਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। जी ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹਦੀ ਐਸਥਮਾ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, जी ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ? जब हमारे पास पेशेंट आता है ना, तो जब हम बेसिकली वी डू हैव सर्टेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कि हमने, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम बॉडी का इलाज में क्या करेंगे। आयुर्वेद ना एक बीमारी को बहुत डिफरेंटली देखता है। अब लोग समझते हैं कि उनको सांस की दिक्कत होगी तो वो अस्थमा जो है लंग्स की प्रॉब्लम है। आयुर्वेद कहता है नहीं नहीं, लंग्स की दिक्कत है लेकिन बाद में है, सबसे पहले इसका रूट कॉज देखना है कहाँ से स्टार्ट हुई है। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा इसका जो रूट कॉज है वो आपका पेट है। अच्छा। आपका स्टमक है बेसिकली। आपने खाना खाया, वो स्टमक ने पूरी तरह से उसको डाइजेस्ट नहीं किया, एंजाइम्स प्रॉपरली नहीं बने, लिवर ने आप डाइजेशन में हेल्प नहीं की, गॉल ब्लैडर आधे लोगों ने तो निकाल ही दी है, उनको लगता है ऐसे बेकार का ऑर्गन भगवान ने डाल के भेज दिया, निकाल दो उसको। उसके बाद उनको डाइजेशन में दिक्कत आई क्योंकि वाइल प्रोड्यूस नहीं हुआ ना। तो ये सारी चीज़ें, जब हमने खाना खा लिया और डाइजेस्ट नहीं हुआ तो वो कहाँ गया। कॉन्स्टिपेशन भी होती है पेशेंट को, एसिडिटी भी होती है, उसका बना कफ, वेस्ट मोविड जिसको हम बोल देते हैं। आपको ये चीज़ तब समझ आएगी ना कि कोई साइनस या अस्थमा का पेशेंट होगा और आप बिल्कुल उसके पास बैठ के फेस टू फेस बात करोगे, आप उस टाइम पे रिकॉग्नाइज करोगे कि उसकी बात करने से और उसके म्यूकस जो है उससे स्मेल आ रही है। अच्छा। हाँ, और ये काफ़ी पेशेंट्स में तो इतनी ज़्यादा होती है कि जैसे अगर हम 5 फुट के डिस्टेंस पे आमने सामने बैठे हैं तो भी आप उस चीज़ को फील कर सकते हो कि नहीं ये पेशेंट जो है इसको ये दिक्कत है। तो ऐसे लोगों का जो कफ है वो खराब हो गया, कफ दूषित हो गया बेसिकली। और वो कफ कहाँ चला गया, आपकी छाती में, आपके लंग्स के आसपास, उसको जहाँ पोर्स मिले, क्योंकि लंग्स जो है स्पंजी शेप में है जी, ठीक है, तो वो वाटर की फॉर्म में, म्यूकस की फॉर्म में वहाँ चिपक गया, अब वहाँ चिपका है और सड़े जा रहा है। तो अब हम उसको ठीक, अब आपने क्या किया, आपने इनहेलर लिया, आपने इनहेलर से सांस ली, आपको ब्रीदिंग नॉर्मल होगी, लेकिन क्या आपका जो सड़ा हुआ म्यूकस था बाहर गया? नहीं गया ना। तो वो तो थोड़ी देर के लिए आपने डायलेशन कर दी तो आप अब बेटर फील कर रहे हो, दैट्स इट। इतना ही पर्पज़ है, क्योंकि हम सिम्टम्स पे वर्क कर रहे हैं इसलिए हम ठीक नहीं हो रहे। आयुर्वेद में हम स्पेसिफाइड क्या कर रहे हैं, हम सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं सबसे। तभी मैंने आपको बोला ना कि मेरे कुछ पेशेंट तो खुद आधी दवाइयाँ छोड़ के चले जाते हैं कि नहीं नहीं पेट की क्यों दे दी है मैडम ने दवाई। तो अब हम क्या करते हैं, हम डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे। पहले सबसे पहले डिटॉक्सिफिकेशन करके हम अपने लीवर को, हम अपने पेट को, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सबको क्लीन करेंगे। और हो सकता है कि पेशेंट को 2-4 बार मोशन भी ज़्यादा आते हो, यूरिन ज़्यादा आता हो, स्वेट आता हो सकता है कई बार कुछ स्पेसिफाइड केसेस में 1-2 बार वॉमिट्स आ जाती हो, तो क्योंकि क्लींजिंग प्रोसेस है।
क्लींजिंग एक बार अंदर से सारा शरीर साफ हो गया, गंदगी जितनी जमा थी वो निकल गई। अब नेक्स्ट स्टेप आएगा, आपको लाइफस्टाइल ठीक करना है। आपको पता है कि आपको कफ वाली बीमारी ज्यादा है तो कफ वाला फूड बंद करना है। कफ किससे बनता है? दूध और दूध से बनी चीजों से कफ बनता है। थोड़े टाइम के लिए, जब तक आप पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाते तो थोड़े टाइम के लिए आप उसको बंद कीजिए, अपनी लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, ठंडा खाना बंद कर दीजिए क्योंकि ठंडा खाना कफ बनाएगा। और आप गर्म चीज़ें जैसे सूप हो गया या फिर कोई भी हर्बल टी हो गई इस तरह के, या च्यवनप्राश टाइप में ऐसी चीज़ें आती हैं, आप ऐसी चीज़ों का इंटेक बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे आप नेचुरली जो है वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए। आयुर्वेद च दवाई इंपॉर्टेंट है कि डाइट इंपॉर्टेंट है? फिर दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है सर। देखिए क्रॉनिक डिजीज वर्ड जहाँ पे आ गया ना, वहां पे आप अकेले लाइफस्टाइल पे यू कांट बी डिपेंडेंट। क्रॉनिक का मतलब यही है कि आप ऐसी स्टेज पे खड़े हो कि आपको नहीं समझ आ रहा कि अब मैं बचूं या नहीं बचूं। ऐसा पर्पस, मतलब ऐसा डेफिनेशंस हैं क्रॉनिक बीमारियों की। क्योंकि आप क्रॉनिक बीमारी के लिए तो आप दवाइयां लाइफ लॉन्ग ले ही रहे हो ना। अब आप ये भी समझिए कि डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा में एक पेशेंट आया, अस्थमा का मानो पेशेंट आया, तो आपको क्या लगता है उसको आज अस्थमा हुआ वो आज ही आ गया? नहीं ना, हो सकता है एक आध साल बहुत साल एलोपैथी लेंदा रहा होगा, परेशान होया, फिर किसी ने दसिया या कितों पता लग गया तो फिर जाके बंदा ये भी सोचता है कि चल आयुर्वेद लेके देख लेने, ये भी एक थॉट होता है, ट्रायल कर लेते हैं। हो सकता है बड़ी पैथीज पहले यूज की हूँ अलग अलग तरह की, ना फर्क पड़ा हो और फिर लास्ट में हमारे पास आता है। अब इतने सालों की बीमारी है, अब इतने सालों की बीमारी और पेशेंट डिपेंडेंट है इनहेलर के ऊपर, तो मैं कैसे उसको कह दूं कि नहीं जी आप जाओ लाइफस्टाइल चेंज करो आप ठीक हो जाओगे? नो, वी हैव टू गिव मेडिकेशन। फिर स्लोली एक बैलेंस बनाने हो कि वो हौली हौली छड़ दे वो दवाइयां एलोपैथी दी या राइट अवे छड़ना? नहीं, राइट अवे भी छोड़ सकते हैं, ऐसा डिपेंड्स पेशेंट टू पेशेंट। और इसमें डॉक्टर बहुत अच्छा आपको गाइड करते हैं बेसिकली। और ये स्लो आयुर्वेद स्लो वर्क करता है, इट्स बेसिकली टोटली मिथ, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये पुराने हजारों साल पहले भी ऐसा लगता है। हुण तक यही सुनया कि आयुर्वेद का मतलब है कि बहुत स्लो दवाई लेनी शुरू करो तो कई साल लगते हैं। ये सबसे बड़ा मिथ है। अब आप मुझे बताओ, आपको थायराइड है, सिंपल थायराइड की अगर हम बात करें, किसी को भी है, तो वो आप मुझे बताओ कितने सालों से कोई भी दवाई ले रहा है? अगर हम सिंथेटिक ड्रग्स की बात करें, वेस्टर्न पैथी ले रहा है, दवाइयाँ खा रहा है, कितने सालों से खा रहा है? पूरी मतलब 10-10 20 साल लोग खा रहा है ना, 20 साल। तो अब 20 साल वाले को अगर मैं 1.5 या 2 साल में ठीक कर दूंगी या उसकी दवाई बंद हो जाएगी और लाइफस्टाइल अच्छा अडॉप्ट कर लेगा, तो क्या फास्ट क्या है? ऑब्वियसली आयुर्वेद ही फास्ट होया फिर तो हम कैसे मतलब मरण तक जे बंदा दवाई ले रहा सवेरे उठ के खाली पेट ते 1.5-2 देखो ये जस्टिफाई कर गए डॉक्टर शारदा ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਲਝਾ ਲਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਲੋ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਲਓ 2 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਖਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਯੁर्वेद ਤਾਂ नहीं कर सकता ना। आयुर्वेद 2 घंटे नहीं लेगा, 1 दिन ले लेगा, 1 दिन ले लेगा, 1 दिन हो सकता है कि 1 दिन में। लेकिन मैंने आपको बुखार को पहले भी एक्सप्लेन किया। देखिए आप, मैं जो समझाना चाह रही हूँ जी, आपको कभी भी ऐसी बीमारियों पे सेल्फ डॉक्टर नहीं बनना। सेल्फ तो मैं एडवाइज ही नहीं करती किसी को भी कि देखिए, क्योंकि हर चीज को समझना, अगर हम ऐसे सिंपल बुखार के भरोसे बैठे रहें और हमारा वायरल लोड बढ़ जाए और हम घर में नुस्खे अपनाई जाएं, तो ऐसा नहीं, ये चीज नहीं करनी चाहिए। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਥਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੇਸ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜਿਆ ਸੀ और ਤੁਹਾਡੇ कोई साझा करना चाहते हो साडे नाल? जी, मेरे पास आज से मेरे ख्याल से 3-3.5 साल पहले लुधियाना मॉडल टाउन में एक बच्ची इन द सेंस की शी वाज 18-19 या 20 ईयर्स या 21 मतलब एग्जैक्टली एज नहीं याद, 18 से 21 साल के बीच की एक लड़की थी। उसका वेट जो था मेरे ख्याल से 80-90 किलो से ऊपर भार उसका हो गया था, पूरी बॉडी फूल गई थी और शी वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन इनहेलर। दिन में 1 नहीं, कम से कम 5 से 6 बार इनहेलर लेती थी। और सबसे बुरा मुझे उस केस में क्या लगा कि वो लड़की मतलब इतने सालों से दवाइयाँ खा रही थी और इनहेलर यूज़ कर रही थी। आप देखिए एक बच्ची, मतलब उसका करियर बनाने का टाइम था या फिर उसकी 1-2 सालों में शादी करने का टाइम था, तो वो लड़की डाइपर पहनती थी। 18 से 20 साल, एग्जैक्टली एज डिफाइंड नहीं है, और बॉडी वेट इतना बढ़ गया और एक लड़की को डाइपर पहनना पड़े होल डे होल नाइट। अब इससे वर्ष क्या ही होगा आप बताइए, ठीक है। और मोटापा इतना आ गया बच्चे को, तो दिन में 5 से 6 बार, और लोकल सिटी की पेशेंट थी,
तो जब वो मेरे पास आई, मदर वाज क्राइंग कि मतलब अब मैंने अब शादी के लिए सोचा है, क्या करूं कैसे करूं, मतलब चलो कर भी देंगे कुछ क्या के, तो 2-4 दिनों में तो पता चल जाएगा। तो वो पेशेंट मैंने पूरी तरह से ठीक किया। मेरे ख्याल से 1 महीने के अंदर अंदर 5-7 बार दिन में इनहेलर लेती थी, 1 महीने में इनहेलर 0 हो गया। लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि बीमारी पुरानी है तो आप उसको साइड स्पॉट में रखिए हमेशा अपने पास, इमरजेंसी कभी भी पड़ सकती है, जब पड़ेगी तो आप उसको यूज़ कीजिए, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। लेकिन कपल ऑफ मंथ्स की बात करूँ तो 5-7 महीनों में, 8 महीनों में वो बिल्कुल ठीक होगी। मोटापा क्यों आया ਉਹਨੂੰ बीमारी हाँ, करके? बीमारी के लिए जो दवाइयाँ ली उसके कारण अच्छा। मोटापा आया, इनहेलर तो लिए, मैं वही सोच ਰਿਹਾ स्टेरॉइड्स ਸੀਗਾ कि लिए। अस्थमा नाल मोटापा क्यों आया? हाँ, दवाइयां करके मोटापा हो गया? हाँ, मेडिसिन्स के साथ, क्योंकि जब भी हम स्टेरॉइड बेस्ड हो जाते हैं तो हमें भूख ज़्यादा लगती है, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस आ जाते हैं। अब आप देखो ना, डायपर पहनना एक हार्मोनल इम्बैलेंस ही तो हो गया कि यूरिन पे कंट्रोल नहीं है, आपको अर्ज नहीं पता कि आपको यूरिनेशन के लिए जाना है या नहीं जाना है। और छोटा कोई बच्चा हो तो समझ लेते हैं कि नहीं अभी ब्रेन उस लेवल का डेवलप नहीं हुआ, बट वी कांट थॉट कि लाइक 20 साल का बच्चे को नहीं पता लगेगा। तो वो ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸਕੇ ਪਰ ਕਾਰਨ। ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਓਵਰ ਦਾ ਇਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਜੀ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਫਰੈਂड्स ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਜੀ ਹੋਰ ਜੀ ਪੈਥੀਜ਼ ਦੇ। जी आयुर्वेद इज नॉट साइंटिफिक, ये क्या जाता है ये कहा जाता है सर, और इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब मैं खुद कहूँगी कि मुझे खुद भी नहीं मैंने खुद अपने आप भी इस चीज़ को डीपली एनालाइज किया है, लेकिन उस एनालाइज करने का जो बेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो लोग ऐसा कहते हैं वो सही कहते हैं। सही कहने का देखिए एक जस्टिफाइड रीज़न अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन ये है, क्योंकि लोगों को बेसिकली पूरी तरह से ना पता नहीं चल पाता कि अगर हम ये बात करें कि उस टाइम पे जैसे मानो कि कोई भी पुराने टाइम की बात ले लेते, चलो वैद्य होते थे पुराने टाइम में, उस टाइम पे तो हमें इतनी डीप इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, वो नब्ज़ देख के बता देते थे। आजकल के टाइम में नब्ज़ देखना जो है, अगर मैं कहूँ कि बहुत सारे बीएमएस डॉक्टर उतने इंटेलिजेंट हो गए हैं तो नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जो बायोकेमिस्ट्री या बाकी टेस्ट हैं वो आ गए हैं, तो आप उसको कितना एफिशिएंटली हैंडल कर रहे हैं उसके लिए बिफोर आफ्टर रिकॉर्ड्स रखिए ना। आपको किसने मना किया है कि आप लैब इन्वेस्टिगेशंस नहीं करवाइए? जैसे आपको एस्थमा की प्रॉब्लम है या मानो आपको जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, तो हम एविडेंस, हम डॉक्टर शारदा डिफरेंट क्यों है बाकी लोगों से? क्योंकि हम एविडेंसेस के साथ चलते हैं। तो ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ? इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मतलब ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲੋਪੈਥੀ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਔਰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਤ ਪਿੱਤ ਕਫ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਯੂ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ है तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए पुराने टाइम में एविडेंसेस बेस्ड कोई साइंस नहीं थी उस टाइम पे, एमआरआई सीटी ये सारी चीजें नहीं बनी थी, अब बनी है। देन व्हाई डू यू फील कि हमें नहीं चूज करना चाहिए? इफ़ यू आर एफिशिएंट डॉक्टर तो आपको करना चाहिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर आपका पेशेंट या सोसाइटी में कोई भी ऑब्जेक्शन क्रिएट ना करे। और मैं तो ऐसे ऐसे डॉक्टर्स को जानती हूँ, अगर मैं आपको रेफरेंस दूंगी तो यू कांट इवन इमेजिन कि वो लोग कैंसर या फिर ये पीछे कोरोना के टाइम में लोगों की आंखें नहीं चली गई थी ब्लैक फंगस के कारण, तो ऐसे लोगों, और उनके पास पूरा एविडेंस का डाटा जो है वो उसको सस्टेन करके रखते हैं, वो उनको क्योर कर रहे हैं ऐसे पेशेंट्स को। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਸਰਚਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਰਿਵਰਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇਨਸਟੈਂਸਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੀ ਰਿਵਰਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? ਜੀ ਜੀ। ਜਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਨੇ, ਹੋਸ਼ੀਮੋਟੋਟਿਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੈਸ਼ੀਮੋਟੋ ਥਾਇਰਾਇਡ, ਯੈਸ ਯੈਸ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ तक पहुंच जाएंगे कि ये डिजीजेस ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? सर फ्यूचर में क्यों जाने की जरूरत है, प्रेजेंट में भी लोग काम कर रहे हैं ना, ओबियसली, और जरूरी नहीं आयुर्वेद कर रहा है, एलोपैथिक भी कर रही है। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਰਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਪਾਰਟ ਫਰਮ ਯੋਰ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ
ਕਿ ਕੁਝ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ? सर एक्चुअली देखिए, अगर हम बात करें तो बीमारियां ही बहुत तरह की हैं दुनिया में, तो हम स्पेसिफाइड 5 सेगमेंट में गए क्यों? ठीक है। डॉक्टर शारदा की यूएसपी ही यही है कि वी जी। डील इन क्रॉनिक डिजीजेज। अब क्रॉनिक डिजीजेज भी वो हमने खुद सिलेक्ट किए हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस गठिया हो गया, या फिर नी रिप्लेसमेंट जिनको सुजेस्ट करते हैं, या जी। स्पाइन में जिन लोगों को बोला जाता है कि आप जाके आपको तो ऑपरेट ही कराना है वो, या एस्थमा ईएनटी डिसऑर्डर्स, या स्किन में जिनमें लास्ट ऑप्शन है कि आपको बायोलॉजिकल इंजेक्शन ही लेने पड़ेंगे। हम ऐसी ही बीमारियों पे काम करते हैं। और मैंने आपको पहले भी यही बताया कि हमारी जो सक्सेस रेशो है कि पेशेंट दवाइयाँ खाना छोड़ देता है और ठीक रहता है, वो 80% से लेके 90% के बीच बीच में हम एग्जिस्ट करते हैं। हालांकि दुनिया के बहुत बड़े हॉस्पिटल्स भी 40 to 50% तक ही रीच बना पाते हैं। ਸਕਿਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? Skin ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਕਿਨ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ जी ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਇਹ 10-20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨੰਬਰਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਓਬਵੀਅਸਲੀ, जी ਪਰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਵਧਿਆ ਇਹ? चमड़ी की बीमारियां जी। बढ़ने का, चमड़ी की सबसे ज़्यादा बीमारियां बढ़ने का सबसे बड़ा कारण अगर फीमेल्स में है तो कॉस्मेटिक्स है। अच्छा। हाँ जी, ये जितना क्रीम, लिपस्टिक, पाउडर, बिंदी, सुर्खी, पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, ये सबसे बड़ा कारण है। इवन स्किन कैंसर्स भी इससे डेवलप हो रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर्स भी इससे डेवलप हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा ये है। और और आप ये देखो कि ये मार्केट कैसे ग्रो ही करी जा रही है। और मैं खुद देखती हूँ तो छोटे छोटे बच्चों को भी मैं कई बार देखती हूँ जो 14, 15, 16 साल के होते हैं। इवन अब वो घरों से बाहर बिना मेकअप के नहीं निकलते बच्चे, इतना बड़ी बड़ी आधा इंच की लेयर लगा के निकलते हैं कॉस्मेटिक्स की। हम अब देखिए हमारे दिन की शुरुआत कहाँ से हो रही है? केमिकल से। जो भी हम ब्रश कर रहे हैं केमिकल बेस्ड है, ठीक है। हर्बल गिने चुने 0.1% में आते हैं, वो हर्बल कर रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया? फेस वॉश यूज़ किया फिल्ड विद केमिकल्स। उसके बाद हमने मॉइस्चराइज़र या कुछ क्रीम लगाया फिल्ड विद जो भी है उसके साथ। उसके बाद चलो 1 आध घंटा सैर वैर कर ली। उसके बाद हमने क्या किया? हमने बैथ ली, नहाए हम। तो किससे नहाए? केमिकल से। सिर पे क्या लगाया? शैम्पू, केमिकल लगाया। बाद में खुशबू वाला ऑयल लगा लिया, केमिकल लगा लिया। बाद में फिर तैयार हुए, परफ्यूम फिर लगाया। कॉस्मेटिक्स लगाए, सारा कुछ लगाया। क्या किया? टोटल केमिकल। घरों में सफाई की किससे की? हार्पिक से, फुल ऑफ केमिकल। उसके बाद आप हार्पिक को हाथ पे लेके दिखा सकते हो? हाथ पे रखोगे आप? बर्तन भी तो केमिकल नाल ही हाँ, धो रहे हैं मैं उसी चीज पे आ रही हूँ कि आप देखो हम एक्सटर्नल लेयर को खराब कर रहे हैं, हम इंटरनली फूड के साथ उसको खराब कर रहे हैं। उसके बाद हमने कपड़े धोए फुल ऑफ केमिकल। उसके बाद हमने बिम बम जो भी यूज़ किए फुल ऑफ केमिकल। ये इतनी सारी चीज़ें फर्स्ट मेन कॉज है। उसके बाद जो आजकल हम कपड़े पहन रहे हैं फुल ऑफ सिंथेटिक्स एंड ऑल दैट, उसके साथ वो कितना केमिकल और हार्मोनल इम्बैलेंस जो है बॉडी के अंदर क्रिएट कर रहा है। सबसे बड़ा कारण ही है केमिकल यूज़ करना। उसके बाद अगर हम बात पे आ जाएं तो सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा कारण है जो हम खाना खा रहे हैं। जैसे हम डेयरी बोलते हैं, डेयरी यूज़ कर रहे हैं, तो डेयरी इज़ फुल ऑफ केमिकल। किसने पाली है आजकल? गाय भैंस हमने खुद की तो रखी नहीं। और जिन लोगों ने पहले ज़माने में खुद की रखी थी वो बीमार भी नहीं हुए थे, नहीं हुए थे। आज ही हो रहे हैं क्योंकि बाहर से मिल्क लेते हैं फुल ऑफ केमिकल। अगर पैकेट वाला लेते हैं वो भी क्योंकि प्रिजर्वेटिव डले हैं, फुल ऑफ केमिकल है। घी, पनीर आप कितना कितना सुनते हो या सब में मिलावट आ रही है। घर पे कौन निकालता है? कोई भी नहीं निकालता। खाना पीना और ज्यादातर मीठा और जंक फूड बहुत ज्यादा हो गया। सो दिस इज लीडिंग टू स्किन डिजीजेस। यस यस, मतलब ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਸਕਿਨ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, खाने ਕੀ का ਅਸੀਂ तो ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ जी, ਅਸਰ ਸਕਿਨ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। खाने का भी होगा सर और बाहर से लगाने का भी होगा क्योंकि स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक लोग है। लेकिन उसको ऑर्गन समझते ही नहीं ना। चमड़ी को कौन ऑर्गन समझता है? जो हम खाते हैं और जो हम लगाते हैं इक्वल अमाउंट पे बॉडी के अंदर जाता है। अगर हम कुछ लगाएंगे भी ना तो स्किन उसको अब्जॉर्ब करेगी, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो पूरी बॉडी में फैल जाएगा। हाँ जी, क्यों नहीं ਜਿਹੜਾ जाएगा? ਮੇकअप औरतां ला रही सारे जाता है। एवरीथिंग गोज इनसाइड, एवरीथिंग गोज इनसाइड। क्योंकि बॉडी डेड ऑर्गन नहीं है ना। आप देखिए हमारे पास क्या प्लास्टिक की शीट तो नहीं चढ़ाई हमने। इट्स ब्रीदेबल ऑर्गन। आप इसका एक्चुअली आपने एक्सपेरिमेंट करना हो तो खुद पे करके देखिए। कोई भी प्लास्टिक की शीट लीजिए, उसमें अपने आप को बंद कीजिए 2 मिनट के लिए, आपको सांस नहीं आएगा। आप अनईजी अनकंफर्टेबल फील करोगे, हार्ट बीट बढ़ जाएगी। आप क्योंकि बॉडी पूरी, हम सिर्फ नाक से थोड़ी ना सांस ले रहे हैं, हम पूरी बॉडी से सांस ले रहे हैं।
हर एक पोर से सांस ले रहे हैं, तो जो हम खा रहे हैं वो भी इक्वल अमाउंट में, वो फिर भी फिल्टर और प्रोसेस होके जा रहा है। जो हम खा रहे हैं ना खाना, वो फिल्टर प्रोसेस होके, क्योंकि अंदर बॉडी के बहुत सारे बैरियर्स काम कर रहे हैं जी। ठीक है, लेकिन जो हम लगा रहे हैं उसमें तो हमने बैरियर ही हटा दिए। आप कुछ भी लगाओगे स्किन पे डायरेक्टली ब्लड में चली जाएगी। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ 1992 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿਸ ਵਰਲਡ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤੇ? ਜੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ जीता। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿ 1992-93 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਅਲਾਓ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 5 ਟਾਈਟਲ ਇੰਡੀਆ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ, ਲਾਰਾ ਦੱਤਾ, ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਸੇਨ, ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ। ਜੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਯੁਕਤਾ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਬਣਨ ਲਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਈਆਂ ਸਾਬਣ ਦੀਆਂ ਐਡਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦੀਆਂ ਐਡਸ। ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਇੱਧਰ, ਫਿਰ ਆਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਤਾਂ ਮੈਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਸਾਬਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਲਵਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਹੈਂਡਸਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਹਾਈਐਸਟ ਪੋਪੂਲੇਟਡ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਯੁਰਵੈਦ 'ਚ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਹੱਪਣ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬਿਨਾ ਮੇਕਅਪ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ। ਜੀ। ਨੇਚਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ? ਨੇਚਰ ਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ? ऑल्टरनेट की नहीं? ऑल्टरनेट तो देखिए, ऑल्टरनेट आज की डेट में भी बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसा होता है कि हम लोग उस एक इजी जोन में है आजकल ना। हम एक लाइफ हर किसी के लिए लग्जरियस है लाइफ, मतलब हमें आसान होने वाली चीज़ें चाहिए। अब मैं आपको बोलूँ कि आपने दांत इस चीज़ से साफ़ करने हैं, बस आप पाउडर बना के रख लेना। आप बोलोगे छोड़ो यार कौन पाउडर बनाएगा, पेस्ट में आ तो रहा है, बस ठीक है थोड़ा सा ही तो उन्होंने फ्लोराइड डाला, क्या ही दिक्कत हो जाएगी इससे? तो क्या दिक्कत हो जाएगी? तो फिर उसमें लिखा क्यों है कि 6 साल के छोटे बच्चों का ध्यान रखना है और वो निगल ना ले, और जब निगल लिया तो इमरजेंसी केयर में आपने डॉक्टर को दिखाना, क्यों लिखा हुआ है उन्होंने? ठीक है। पाउडर, अब वो बच्चा किसका है, मेरा है कि आपका है? जिसने खाया वो मेरा बच्चा है, आपका बच्चा है। देखिए मैं अपने बच्चों के लिए अवेयर हूँ, तो मैंने पाउडर घर पे बना के रखा है अपने पति के लिए, अपने लिए। और ठीक है कि इसको मैं कब, हाँ सच में रखा है वो, ही इज़ वेरी मच फैमिली, आपको बता सकते हैं ये बाद में। तो मैं तो ऐसी चीज़ें बहुत करती हूँ इन लोगों के लिए, जो मेरे ही है ना, बच्चे भी मेरे हैं, पति भी मेरा है, मेरी फैमिली है, मैं तो सबको सजेस्ट करती हूँ। तो आपके बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? उसके लिए सबसे पहले आपको शिक्षित होना पड़ेगा। ये जो उटपटांग सोशल मीडिया पे देखते हो, उससे हट के थोड़ा पढ़ने वाली चीज़ें जो आपकी फैमिली को सुरक्षित रखेंगी, आपको वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप दांतों के लिए पाउडर बनाने में कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट लगेंगे। मैं तो हर पेशेंट को डाइट चार्ट में लिख के मैंने वो पूरा नुस्खा बताया उनको कि कैसे कैसे लिखना है, पर मैं सही बताऊं एक भी पेशेंट उसको फॉलो भी नहीं करता। उनको लगता है मैडम ऐसे लिख देती है। मैं अपनी तरफ से जो मैं करती हूँ मैं सब बताती हूँ कि ऐसा करो, पर आगे अगर कोई ना करे तो देखिए हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले सकते हैं। बहुत सारे मिथ ने, खास तौर पे प्रेगनेंट औरतां ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਕਿਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ डिटेल ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ कि ये पॉसिबिलिटीज होंगी हैं? यस 100% ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब मैं सोराइसिस पे आती हूँ, आपको इसी चीज़ पे थोड़ा सा मैं बताती हूँ। आयुर्वेद कहता है कि सोराइसिस जो है मतलब मानो कि किसी भी युवा व्यक्ति को, आपको, मुझे या किसी को भी होगी, तो जो उसका बीज था ना वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक 50% केसेस में जो बीज था वो प्रेगनेंसी के टाइम में डेवलप हो गया था। प्रेगनेंसी के टाइम में कैसे कि जब आप अपनी माता के पेट में थे तो उस टाइम पे काफ़ी लेडीज़ को नोजिया, वॉमिट्स ऐसी चीज़ें होती हैं और फ्रिक्वेंटली होती हैं। और आजकल क्या करते हैं लोग, सेंसिटिव बहुत ज़्यादा है, ज़रा सी उल्टी आती है डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। अब वही अगेन सिंथेटिक मेडिसिन में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? केमिकल्स।
केमिकल से ही बन रही हैं। तो केमिकल, आपको उल्टियाँ आई, आप चले गए, आपने बोला डॉक्टर को, उन्होंने थोड़ी बहुत सेफ वाली हल्की सी दवाई दे दी कि आपके बच्चे को असर ना करे। आपने वो दवाई खाई तो हुआ क्या, उल्टी बंद हो गई, यही हुआ, आप कंफर्ट में चले गए। लेकिन वो जो पॉइजन बॉडी के अंदर था, बॉडी उसको एक्सपेल कर रही थी, बाहर निकाल रही थी, आपने उसको जान के रोक लिया। अब वो पॉइजन आपको क्या लगता है कि आपको और आपके बच्चे को हर्ट नहीं करेगा? आपका बच्चा बना किससे? फादर के स्पर्म के साथ बना, लेकिन बॉडी किसने प्रोड्यूस की बच्चे की? ऑर्गन्स, उसको ब्लड, बोन्स, वो माँ से बना है। माँ ने ही अपनी बॉडी के जितने हमारे जैसे सप्त धातुएं हैं, उन्हीं से एक नया बॉडी का, मतलब ठीक है कि बीज फादर का समझ लेते हैं हम, ठीक है, लेकिन बॉडी तो आपने मदर ने बनाई ना जी। अब मदर ने कैसे बना दी? जो मदर की बॉडी है वही तो बच्चे की बॉडी है। तो जो आपके शरीर के अंदर गंदगी है, बच्चा इक्वल पार्टनर बनेगा आपकी गंदगी का। जो प्रेगनेंसी टाइम औरत कंज्यूम कर रही है, ਉਹਦਾ असर ਸਿੱਧਾ ਬੱਚੇ ਤੇ पड़ेगा, 100% पड़ेगा। और फ्यूचर ਚੋਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਉਸ प्रेगनेंसी दौरान तय हो जाता है। बिल्कुल 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 होता है। बहुत सारे केसेस में जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी हम इसी चीज को तो बोल देते हैं कि अगर ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ प्रेगनेंसी 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀ ਰਹੀਆਂ, सिगरेट भी पी रही जी, ਉਹਦਾ बहुत गंदा असर होगा। फिर गंदा असर तो है सर। आप अगर आपको ये चीज़ें पीनी ही हैं, देन मेरे हिसाब से आपको प्रेगनेंसी पे जाना ही नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मुझे ऐसी चीज़ों, मुझे ऐसा ही लाइफस्टाइल पसंद है, मैं स्मोक करना चाहती हूँ, मैं सारा जो भी है ये अल्कोहल या ऐसे कुछ भी कंज्यूम करना चाहती हूँ, देन यू शुड नॉट प्लान फॉर अनदर लाइफ। देखिए, बच्चा एक अकेले आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, इस चीज़ को लोगों को समझना पड़ेगा। एक बच्चा एक देश, एक स्टेट, एक बहुत बड़ा एम्पायर जनरेशन का अधिकारी है। बच्चा सिर्फ हमारे घर तक तो सीमित नहीं है ना, कल को वो हो सकता है अच्छा आईएएस बने, कुछ भी बने, या उस लेवल का बने। आप क्या कर रहे हो? आप एक बीमार बच्चा पैदा कर रहे हो। आपको ये तो सबको ही पता है कि हम ऐसा खाएंगे तो बच्चा बीमार ही होगा, नो डाउट। वर्ल्ड च ऑटिज्म ਵਧਿਆ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ऑटिज्म सर बढ़ने का कारण है, लोग जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिलीज में शिफ्ट हो गए ना। पहले बच्चे को माँ नहीं देखती थी, दादी देखती थी, चाची देखती थी, इधर घूम रहा है, गांव में घूम रहा है, तो उसके बिहेवियर्स जो हैं वो प्रॉपरली डेवलप होते थे। आज किसको देख रहा है बच्चा? माता जी उसकी इंस्टा देखे जा रही हैं, पिताजी काम पे चले गए, वो किससे बात करेगा? तो उसको ऑटिज्म डेवलप नहीं होगा। जेनेटिकली भी हो रहा है, जेनेटिकली भी हो रहा है, क्योंकि माँ ਜਦੋਂ प्रेगनेंट ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ऑटिज्म ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆ ਰਹਾ ਹੈ। ਯੈਸ, ਸਕਿਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇसेस ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਾ प्रेगनेंसी दौरान माँ दियां XYZ बिहेवियर करके बच्चे ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਈਆਂ? देखिए, हम ऑटिज्म पे बहुत बड़े लेवल पे काम नहीं करते। मैं सिर्फ ऑटिज्म ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, मैं चाहे ਉਹ स्किन डिजीजेस ਹੋਣ, चाहे स्पाइन डिजीजेस आए होਣ, चाहे गठिया अगे जाके किसी ਨੂੰ छोटी उम्र च भी हो जाता है। जी 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 जी, ये गठिया जो है छोटे बच्चों में, इसको जुवेनियल आर्थराइटिस बोल देते हैं हम, ठीक है। अस्थमा को मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया, न्यू बॉर्न में भी डेवलप हो जाता है। स्किन डिजीज आपने अगर सबसे ज़्यादा बच्चों में देखनी है, देन यू मस्ट विजिट USA। मेरे ख्याल से मैंने 1.5 साल पहले काम किया USA में। तो मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन करके पेशेंट्स देखती थी, एंड आई वाज सो वरीड कि मेरे पास बच्चे कैसे आए। मतलब मैंने तो ये सोच के काम किया कि चलो बड़े लोगों को स्किन डिजीजेस तो वो आएंगे, मेरे पास 2 महीने के, 6 महीने के, 12 महीने के, 1.5 साल के ऐसे बच्चे आए, एंड दे आर ह्यूजली दे वर सफरिंग लाइक एनीथिंग। तो आप ये सोचिए, USA जैसी कंट्री में क्या उनको इलाज नहीं मिलता? तो किस तरह की स्किन डिजीज हो रही हैं? लाइक एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, सोराइसिस छोटे बच्चों में, जो दूध पीते बच्चे हैं। अब कई बार तो मुझे ये भी उस टाइम पे ये आ जाता था कि मैं इनको दवाई खिलाऊं कैसे, ये तो मदर फीड पे है। तो ऐसे केसेस में हमें वो दवाइयाँ जो हैं वो मदर को देनी पड़ती थी, तो हम मदर को दवाई खिलाते थे। अच्छा जी, तो बच्चे को ठीक करने के लिए। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਏਗੀ ਸਰ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ,
ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼? सर वो चाहे फीड करे चाहे ना करे, अगर मानो कि इस टाइम मैं क्रॉनिक बीमारी के साथ जूझ रही हूँ और मेरी प्रेगनेंसी होगी और मैंने प्रेगनेंसी पे ध्यान नहीं दिया, तो हो सकता है कि अगर मतलब जैसे मैंने सिम्टम्स बताए, जैसे नोजिया हो गया, वॉमिट्स आ गई या बार बार फीवर आया और मैंने बहुत सारी दवाइयाँ खाई, सिंथेटिक ड्रग्स की मैंने चूज़ किया और मैंने ली, तो वो आपके बच्चे का सिस्टम को स्लो करेगा और आपके बच्चे की जो इम्यूनिटी है वो कंप्रोमाइज्ड होगी, आपका बच्चा हेल्दी नहीं होगा। कुछ भी हो सकता है, एनी काइंड ऑफ डिजीज। ये नहीं है कि माँ को गठिया है तो बच्चे को भी गठिया होगा, ऐसा नहीं, लेकिन क्रॉनिक डिजीज डेवलप होगी ही होगी। आजकल आप देखो छोटे छोटे बच्चों को इतना ज़्यादा सीवियर फॉर्म में कैंसर हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? हालांकि सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, दुनिया में सबसे जल्दी ठीक कौन होता है भी किसी बीमारी से? बच्चे। अच्छा। उनका, क्योंकि जो बॉडी का मैकेनिज्म है ना वो इतना फास्ट हील करता है, इतना फास्ट हील करता है, उतना मतलब हम बड़े लोगों का नहीं करता, लेकिन फिर भी इन स्पाइट ऑफ दैट बच्चे जो हैं वो सफर कर रहे हैं ऐसी बीमारियों के साथ। ਤੁਸੀਂ ਗਠੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, जी ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ 'ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਆ, ਗਠੀਏ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਰਤੀਆ ਇਲਾਜ, ਔਰ ਉਹ ਪਾਊਡਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਪੀਸ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੜਾ ਬੜਾ ਕੁਇਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਲੰਗਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। जी 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 ਥੋੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀ ब्लफ कर रही है या वो लोग, और वो डॉक्टर्स भी नहीं है जेडे लोग दवाई दे रहे देखिए हैं? एग्जैक्टली ये तो ब्लफ है ना, जो चीज़ गलत है उसको एडमिट कर लेना चाहिए। देखिए ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। द मोमेंट यू आर जस्ट, आप ये मत देखिए कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, यू जस्ट वॉच कि आप एक ह्यूमन लाइफ को ट्रीट कर रहे हैं और आप ऐसा कुछ भी गलत कर देंगे और अगले की लाइफ पर्सन को लाइफ थ्रेटनिंग ऐसा कुछ हो जाएगा। अगर होता है देन यू मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वर्क। और पेशेंट ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? पेशेंट को तो देखिए सेल्फ अवेयरनेस के ਲੋਕ इंडिया ਪਿੰਡਾਂ में ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਠੀਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪੁੜੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬਸ, ਤੇ ਉਹ ਪੁੜੀਆਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੁੜੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੁੜੀਆਂ ਖਾਓ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਰਦ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਤਾਂ ਗਠੀਏ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿ एग्जैक्ट है कि और किवें ठीक होगा। देखिए गठिया एक साधारण बीमारी नहीं है कि जोड़ों में दर्द हो गया और आपने कुछ खाया और आप ठीक हो गए। ये सिंपल बीमारी नहीं है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स डिजीज बेसिकली। और ऐसा भी नहीं है कि गठिया आपको आज ही हुआ और आपने आज ही दवाई खा के उसको ठीक कर लिया, क्योंकि आपको सिंपल सी बात है, आपको 5, 10, 2 साल पुरानी कोई भी बीमारी है ना, तो अपना दिमाग थोड़ा, बुद्धि परमात्मा ने सबको दी है, काइंडली उसको यूज कीजिए कि आप 1 महीने में ठीक नहीं हो सकते। ठीक है, ठीक है, आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी और आपको 6 महीने, 4 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, डिपेंड ऑन द कंडीशंस बेसिकली, क्योंकि गठिए में भी बहुत सारी वेरिएशंस है, टाइप्स बहुत सारी हैं और हो सकता है कि आप दिखने में नॉर्मल दिखे और एक पेशेंट नॉर्मल दिखेगा और दूसरा पेशेंट एंटायरली डिफरेंट दिखेगा, उसके हाथ पैर की उंगलियां ही मुड़ गई होंगी, बिल्कुल मतलब आपको ऐसे लगेगा जैसे हमने कोई भूत प्रेत देख लिया। अच्छा, इस लेवल तक? हाँ हाँ, बहुत सीवियर डिफॉर्मिटी। जी जी आते हैं मेरे पास। तो एक पेशेंट मुझे आज भी याद है, एक गाड़ी में एक पेशेंट आई थी और वो ऐसे फुटबॉल बनी हुई थी। फुटबॉल मतलब पूरी बॉडी उसकी ऐसे गोल, और वो जो उसका हस्बैंड उसको निकाल भी नहीं पा रहा था गाड़ी से, तो मैंने वो पेशेंट को गाड़ी में जाके देखा था। इतनी वर्स्ट, ये वर्स्ट कैटेगरी है। अब जो ये ऐसी वर्स्ट कैटेगरीज हैं, इनको तो देखिए आराम से 5-7 साल तो लग ही जाएंगे ठीक होने में। ठीक है, ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम जो है वो 2 महीने में ठीक हो जाए। अब मैं बात कर रही हूँ कि जो लोगों को 5 या 10 साल से पुरानी बीमारी है, लेकिन बॉडी जो है उस लेवल पे ये कंप्रोमाइज्ड नहीं है, तो वो 6 महीने से लेकर 1.5 साल के बीच में कहीं पे भी ठीक हो सकते हैं। लेकिन आप ऐसे अंधा विश्वास करके जाएं कि नहीं नहीं चलो डॉक्टर शारदा में ही हम महीने में ठीक हो जाएं, तो वो अंधा विश्वास है। आपको कॉमन सेंस हर इंसान के पास है, परमात्मा करे कि बुद्धि विकसित हो। हमारे गुरुओं ने भी हमें यही सिखाया है। ਜਾਂਦਾ ਕਿ यूरिक एसिड ਵਧਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਗਠੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। हाँ बनेगा, बनेगा ਜੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। जी जी जी, क्योंकि सारी ऑटोइम्यून डिजीजेस का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो लाइफस्टाइल है। यूरिक एसिड कैसे बढ़ा?
बॉडी का जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसने अच्छे से काम नहीं किया और आप ऐसा खाना खाते गए जो उसको और स्लो डाउन करे। तो जब आपकी बॉडी से गंदगी नहीं निकली, हो सकता है वाटर की फॉर्म में या फिकल वेस्ट की फॉर्म में या स्वेट, आजकल पसीना किसको आता है, सब एसी में बैठते हैं हम लोग, वैसे नहीं हुआ तो वो बीमारी बनी ना, यूरिक एसिड बना। अब यूरिक एसिड को आपने अनट्रीटेड छोड़ दिया, आज आपने सोचा चलो छोड़ो ऐसे ही है, 1-2 महीने निकाल दिए, जब 2 साल निकाल दिए तो क्या लगता है आपको बॉडी एक गंदी चीज हमारे शरीर के अंदर पड़ी रही तो वो बीमारी नहीं करेगी। हम मानो हमने 1 किलो पिज्जा बर्गर लेके आए, हमने अपने एक छोटे से कैबिन में छोड़ दिया, आपको आप 15 दिनों बाद देखोगे आपको आपके कैबिन में स्मेल नहीं आएगी, वो फंगस नहीं होगी, उधर कीड़े मकोड़े पड़ गए होंगे, उसके अंदर सेल्फ जनरेटेड जर्म्स डेवलप हो गए होंगे। तो ऐसा ही शरीर के अंदर होता है, सेम चीजें ऐसी होती है। इस करके देखिए चाणक्य ने भी ये कहा हुआ है, जो मतलब इकोनॉमिक्स सबसे ज्यादा पढ़ाते थे, अर्थशास्त्री थे, उन्होंने इस पे भी बोला है कि कोई भी बीमारी जब भी स्टार्ट होती है उसको तभी मार दो मतलब उसका उपचार कर लो। ਵਾਤ ਪਿੱਤ ਕਫ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਕੀ ਹੈ ਵਾਤ ਪਿੱਤ कफ नाल शरीर किवें चलदे है? देखिए जब ह्यूमन बॉडी, ऐसा माना गया है कि जितना भी संसार बना है, मिट्टी पत्थर, एक में तो जीवन है, एक बिना जीवन के है, जैसे कोई सूखी लकड़ी, पत्थर या ऐसी चीज़ें, ये सारी जो सारी की सारी चीज़ें हैं ना, ये 5 चीज़ों से बनी हुई हैं। चाहे ह्यूमन बॉडी, चाहे कोई जानवर बना है, चाहे कीड़े मकोड़े बने हैं, चाहे मिट्टी बनी है, चाहे सूरज की रोशनी है, चाहे पत्थर है, कुछ भी है, पूरी सृष्टि, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल यूनिवर्स। तो ये सारा होल यूनिवर्स जो है वो 5 महाभूतों के साथ बना गया है, जिसमें जैसे पानी है, आग है, हवा है, आकाश है, धरती है, इस तरह की 5 जो मेजर फोर्सेस हैं वो सारी इसी के साथ बनी हुई हैं। तो इसको हमने आगे जाके आयुर्वेद में जब हम ह्यूमन बॉडी के ऊपर आए तो थोड़ा सा और इसको कंसाइज कर दिया, तो उसको हम ले गए बात, पित्त और कफ। तो अब अगर हम इसको सिंपल भाषा में देखें तो जब एक बच्चा जन्म लेता है तो आप बताइए मुझे कि आपकी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग जो है छोटे बच्चों में क्या बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती है? ਜਦੋਂ ਜੰਮਦਾ ਤਾਂ ਪੀਲੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ, वो तो तब होता है जब हाँ। सी सेक्शन के कारण ਤੇ एक्सेसिव ਬੁਖਾਰ एंटीबायोटिक। ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। नहीं, छोटे बच्चों में आमतौर पे बीमारी कोल्ड होता है, खांसी होती है, जी। छाती जाम होती है, यही जी। बीमारी होती है, इसके अलावा ज़्यादा बीमारी नहीं होती। हम्म। तो आयुर्वेद ये कहता है, आज नहीं कह रहा, चरक संहिता 5-10 हज़ार साल पुरानी है, उसमें भी यही लिखा है कि जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने से 8-10 साल के 12 साल के अंदर अंदर बॉडी में कफ प्रधान होता है। ठीक है। मतलब कफ बॉडी में जो एक अच्छी क्वालिटी का जो कफ है वो उसमें उसकी जो है वो लेवल ज़्यादा हायर साइड पे रहेगा। तो छोटे बच्चों में हमेशा जब बीमारी भी होगी ना तो कफ को लेके ही होगी। अब उसके बाद सेकंड फेज पे आते हैं, टीन एज से लेके 14-15 साल से लेके 30-35 साल तक ले लेते हैं हम। इस आजकल थोड़ा लाइफ स्पैन कम हो गया है, पहले तो 50 साल तक भी था। तो इस टाइम पे कौन सी बीमारी देखने को मिलती है? मैक्सिमम लोगों को एक्ने हो जाते हैं, पिंपल्स होते हैं, या फिर उनको थोड़ा एसिडिटी होगी, या गर्मी ज़्यादा लगेगी, या स्किन की बीमारियां ज़्यादा देखने को मिलेंगी। युवाओं में सोराइसिस, एक्जिमा, डर्मेटाइटिस ज़्यादा है, वो इसी कारण, क्योंकि ये अवस्था ऐसी है, क्योंकि इस टाइम पे आपको बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट भी चाहिए, एनर्जी भी चाहिए, पूरा जोश चाहिए, सारा कुछ चाहिए। तो पित्त इस टाइम पे बहुत प्रधान होता है। अब हम इसके बाद 40-50 साल के बाद जाते हैं तो वहाँ क्या बीमारियां देखने को मिलती हैं? गोडे, जोड़ों में दर्द, जोड़ों में दर्द, या नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स, जैसे कि किसी को पार्किंसंस होगी, या लकवा हो गया, या आँखों की रोशनी घट हाँ गई, आई साइट वीक होगी, जोड़ों में दर्दें होगी, नसों से रिलेटेड और जोड़ों से रिलेटेड। तो जब ये उम्र आती है उस टाइम पे बात जो है अपने उस पे लेवल पे जाता है। तो ये तो टाइम फ्रेम्स हैं कि इस टाइम फ्रेम पे जब हम एनालाइज करेंगे तो ये बीमारियां जो हैं वो ज़्यादातर इस अवस्था में उम्र के हिसाब से देखने को मिलेंगी। हर बंदे च अलग-अलग है प्रवृत्ति। यस, एग्जैक्टली ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग एज वेल एज, अगर हम बात करें तो जानवर भी एक दूसरे से अलग हैं। जो अब इसी चीज़ में मैं बहुत डीपली सोचती हूँ कि कैसे हम बोल देते हैं कि एक मानिए आपकी और मेरी एज सेम है, हम दोनों 40 साल के हैं, तो ये कोई भी साइंस कैसे डिफाइन कर सकती है कि आपको 400 कैलोरी खानी है और मुझे भी 400 कैलोरी खानी है? कैसे हो सकता है ऐसे? हालांकि आपका बॉडी का मैकेनिज्म डिफरेंट है, मेरा डिफरेंट है। हो सकता है आपको 400 कैलोरी भी कम पड़े, हो सकता है मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हो जाए। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी अंदर से कैसे चल रही है। अब इस चीज़ को कौन डिसाइड करता है? बात, पित्त और कफ।
ओके। तो ये एक जनरलाइज्ड फिनोमिना हर किसी के लिए नहीं ਕੋਈ चलेगा। ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਾਤ ਪਿੱਤ ਕਫ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ यस ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਦੇਣਾ ये ਇਹਦਾ। एग्जैक्टली क्योंकि हर गठिए के पेशेंट को एक ही दवाई थोड़ी ना ਤਾਂ दे ਇੱਕੋ सकते ਮਾਂ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ हैं, रोल अलग अलग है। ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। एग्जैक्टली ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। नहीं नहीं नहीं। और एक ह्यूमन बॉडी के अंदर ये तीनों चीजें अवेलेबल है। अब इसमें जिस चीज में इम्बैलेंस चला जाना है, मानो कि मेरी उम्र इस टाइम है 30 साल और मुझे जोड़ों की दर्दें होगी, तो डेफिनेटली है कि मेरे अंदर जो है वो बात कुपित हो गया। कुपित मतलब खराब हो गया, इम्बैलेंस हो गया, जिसको एक ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। हाँ, तो मैं फिर वैसी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट या मैं वैसी दवाइयाँ चूज करूंगी जो बात को बैलेंस करेगा। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ खयाल नब्ज देख के नहीं, नब्ज पुराने हम जमाने- नहीं देखते ज़्यादा। उसका सबसे बड़ा स्पेसिफाइड रीज़न ये होता है कि देखिए नब्ज देखने का स्पेसिफाइड टाइम होता है। उसका टाइम ये होता है कि अर्ली मॉर्निंग यू हैव टू कम टू द फिजिशियन, और तब ही आपका प्रॉपर जो है वो हम उस लेवल पे जो एक अच्छी जो आपको रिजल्ट दे सकते हैं वो खाली पेट आप दिखाएंगे तो दे सकते हैं। अगर आप जनरलाइज्ड ऐसे दिन में आके बोलें कि हाँ मतलब मैंने खाना भी खा लिया, कोक भी पी ली, बर्गर भी खा लिया, अब मेरी नब्ज देखो, अब बताओ कोई बाहर से ऐसी मिठाई खा के आ गया, उसकी तो हार्ट बीट वैसे बड़ी होनी आजकल सिंथेटिक फ्लेवर्स की वजह से। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਸ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਆਈ ਗੈਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਾਤ ਪਿੱਤ ਕਫ ਔਰ जी आगे ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ जी ਕਿ जी आगे ਕੀ होंगी, ਕਰਨਾ ਹੈ। बट आई एम नॉट दैट मच अवेयर ऑफ दैट। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਪੇਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਮ ਜੀ। ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਹਰ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬੈਕ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੇਨ ਹੈ, जी ਕੋਈ ਮਣਕਿਆਂ 'ਚ ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਲਿਪ ਡਿਸਕ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। जी ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ? नहीं नहीं सर, ऑपरेशन मतलब दिस इज़ द लीस्ट सर्जरी जो मैं रेकमेंड करूँगी किसी भी पर्सन को, कि अगर कोई होप नहीं है लाइफ के, आप बिल्कुल लास्ट उसमें खड़े हो, तो ही देन ओनली देन यू शुड थिंक अबाउट दैट। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखिए यूएस में जो स्पाइन का ऑपरेट हो रहा है, यू कैन नॉट कंपेयर कि इंडिया में भी वैसा ही होगा। सबसे पहले तो आप ये देखिए आपकी बॉडी खुलने वाली है, जिस ऑपरेशन थिएटर में खुलेगी वहाँ पे जैसे कितने ही ऑपरेशंस चल रहे हैं, और ये चीज़ को इंडिया भी बहुत अच्छे से समझता है कि हम हाइजीनिकली पॉइंट ऑफ व्यू से उस लेवल का एटमॉस्फेयर किसी भी पेशेंट को नहीं दे सकते। इन्फेक्शंस, सीवियर इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो उस लेवल के पूरे नीट क्लीन और वैसे स्टरलाइज्ड हो सकता है, कई बार ह्यूमन बीइंग है तो इस तरह का ये चीज़ें आ जाएं, और इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पैरामीटर्स नहीं है। अब जो सर्जरी का सक्सेस रेट आपको यूएस में मिल रहा है वो यहाँ इंडिया में कुछ हॉस्पिटल्स जो हैं अच्छा दे सकते हैं, लेकिन दे आर मच मोर एक्सपेंसिव। वो हो सकता है सारे अफोर्ड ना करें। अब आप कहीं पे भी जाके ऐसे बोलो कि मेरा ऑपरेट कर दो, अगलों ने तो कर ही देना है देखो, बट हु गॉट कॉम्प्रोमाइज्ड? आप, क्योंकि उसके साथ बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशंस आती हैं काफ़ी। अब इसमें एक 4 साल पहले मेरे पास 27-28 साल का लड़का था, उसने स्पाइन की सर्जरी करवाई थी। वो आया मेरे पास, उसको स्पाइन की सर्जरी हो गई, उसके बाद उसको परमानेंटली यूरिन के लिए बैग लग गया। वो क्यों? क्योंकि वो सक्सेस नहीं हुई। अच्छा, पक्के तौर पे उत्ते यूरिन बैग हाँ परमानेंट। तो वो इसलिए मेरे पास आया था कि आप मेरा बाकी इलाज करो ना करो, लेकिन ये यूरिन बैग जो है वो निकल जाना चाहिए। आप अब इमेजिन करो एक 27-28 साल का लड़का जिसने पूरी आगे लाइफ देखनी है, अब उसको परमानेंटली यूरिन बैग लगे। ਤਾਂ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਛੋਟੇ, ਇੰਨੇ ਭਾਰੇ ਬੈਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੰਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਸਪਾइन ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ? ऐसा आजकल के टाइम में कह सकते हैं, क्योंकि आपका बच्चा कमज़ोर है। कमज़ोर मतलब देखने में नहीं है, लेकिन उसका बॉडी का जो कैपेबिलिटी है, अगर आप 25 साल पुरानी बात करें तो 25 साल पुराने टाइम में अगर मैं जाऊं तो मैं तो 30 kg खुद ही उठा लेती थी। जब मैं स्कूल जाती थी या मैं कॉलेज जाती थी तो मैं बच्चा थी, तो मुझे याद है कि गैस का भरा हुआ सिलेंडर मैं खुद अपने शोल्डर पे या सिर पे उठा के लेके जाती थी। 10-15 किलोमीटर या 2 किलोमीटर भी चल लेती थी, क्योंकि हम जो खाना खा रहे थे और जिस लाइफस्टाइल में हम उस टाइम पे थे, वी यूज टू गो इनटू अ डीप हार्ड वर्क, हम करते थे। अब कौन कर रहा है? अब हम गिलास नहीं उठा सकते 250 ग्राम का, और हम फिर सोच रहे हैं कि हम 20 किलो वजन उठा के चल पड़े, तो वो कंप्रोमाइजिंग है कहीं ना कहीं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है विटामिन डी की बहुत ज़्यादा जो है वो लो है, लेकिन हम उल्टा इलाज करते हैं। हम कहते हैं कैल्शियम दो, दूध भी दो, ये भी दो, वो भी दो। हम कैल्शियम पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, हम विटामिन डी पे फोकस ही नहीं कर रहे, जिसके साथ जो है वो बोन्स ने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है किसी पॉइंट पे आके।
बच्चों में या बड़े लोगों में घी जो है वो बहुत अच्छी एक इसमें मैं बोलती हूँ कि जो गाय का क्लैरिफाइड बटर घी है देसी गाय का, वो बहुत अच्छा, और इवन भैंस का भी, अगर आपके पास खुद की भैंस है तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन भैंस के घी में सिर्फ एक ही बात है, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू डाइजेस्ट दैट बेसिकली। गाय के घी में आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। अब जब हम घी खाते हैं ना, तो वो जो घी है वो हमारी बोन्स के लिए सबसे बड़ा, और दूसरी बोन्स के लिए तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आजकल हमारे मसल्स कमजोर हैं, तो हम 1 किलो भी भार उठा के, मतलब कोई आप किसी को बोलो तो सही 2 किलो उठाना, हाय मैं तो थक गया या थक गई, मतलब वो वाला हो रहा है। आजकल हम चाइनीज गुड़िया गुड़िया बन गए। हाँ। कि अब उतने बच्चे, अब उनकी कैपेसिटी नहीं है वो सारा कुछ करने की, तो हम उनको ऐसा, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਪਾਈਨ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। हाँ, क्योंकि ਮੈਂ बैक ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ पोस्चर, ਪੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕਿ ਜੇ ਪੈਂਟ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਰਸ ਪਾਇਆ, ਵਾਲਟ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। जी एक्चुअली ना, क्योंकि एकदम से नहीं होता सर, ठीक है, आप लेकिन उस चीज़ को रूटीन बना लेते हो ना, यू आर डूइंग दैट फॉर टू नेक्स्ट 3 और 5 ईयर्स, तो वो बॉडी के जो पोस्चर हैं उसमें इनकरेक्शंस आ जाती हैं। अब जहाँ रीढ़ की हड्डी को सीधा बैठना था, सीधे रहना था, वो ऐसे बिल्कुल झुकी पड़ी है, तो वो आज नहीं होगी दिक्कत, 2 सालों 3 सालों बाद जब पोस्चर्स की बात आएगी ना। स्क्लोसिस क्यों डेवलप हो रहा है? स्क्लोसिस मीन्स कि आपकी स्पाइन में एक सर्टेन डिफॉर्मिटी आ रही है, ठीक है, तो वो क्यों? इसी के कारण, क्योंकि लंबे समय तक आपने इस तरह से किया। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आपने सुना होगा, HLA-B27 जिन लोगों का पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन उसको गठिए की कैटेगरी में रखा जाता है, ऑटोइम्यून डिजीज। तो वो क्यों डेवलप हुआ? क्योंकि लाइफस्टाइल सही नहीं थी, आपने बहुत सारा प्रोटीन खाया, बहुत सारा खाया, लोग तो पागल हुए पड़े, प्रोटीन खाओ, शेक पी लो, ये कर लो, वो कर लो। आप देखो आपकी बॉडी डाइजेस्ट करेगी क्या इतना प्रोटीन? समझने की बात सिंपल सी इतनी है, कुछ भी खा लो, जो मर्जी खा लो, लेकिन ये आपको एट द एंड ऑफ द डे ये पूरा पता होना चाहिए जो खाया वो डाइजेस्ट हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं डाइजेस्ट हुआ तो ऐसे गलत शलत रूटीन मत यूज कीजिए। ना ही ज्यादा कैल्शियम खाइए, ना ही ज्यादा प्रोटीन खाइए, उतना खाइए जितना बॉडी को नीड है। ओवर 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 डाल के हम क्या सोचते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे। अब 24 अंडे खा जाते हैं अब कैसे? अब 24 अंडे खाने हैं तो पहलवानी करो ना अखाड़े में, वहां जाओ, वहां कुश्ती करो 4-5 घंटे, फिर वो डाइजेस्ट होगा। ऐसे आप खा लिए 24 अंडे खा के बैठ गए हम, तो कल को तो हमारा पेट कहाँ का कहाँ पहुंचना है, सो जाओ उस तो बाद वही है, क्योंकि हाई प्रोटीन है। और इवन आयुर्वेद में तो ये कहा गया है कि अंडे सिर्फ वही डाइजेस्ट कर सकता है जिसका शरीर लोमड़ी जैसा हो। आप बिल्कुल चुस्त चालाक होने चाहिए जैसे लोमड़ी होती है, बस मिनट में भाग गए, इधर गए उधर गए, तब डाइजेस्ट होता है। वो खा के बैठ गए तो फिर तो बीमारी लगनी है ना। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਐਮਪਾਇਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀਗਾ कि एक दिन ਇੱਥੋਂ तक पहुंच जाएंगे? जी, ये विजन तो बचपन से ही था। बचपन से ही ऐसा था, सोच, मतलब देखिए, मैं अपनी बात करूं तो मैं एक ड्रीम वर्ल्ड में ज़्यादा रहती थी बचपन में, कि जहाँ उस टाइम पे कोई सोशल मीडिया, फ़ोन, या मतलब हमें तो कुछ भी पता चलता था तो लेटर आता था जो पोस्ट ऑफिस से आता तभी पता चलता, तो कोई अखबार नहीं, कुछ नहीं, नो सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशंस एंड ऑल दैट। तो मैंने तो वहाँ से अपनी लाइफ शुरू की है, वो जस्ट ड्रीम्स देख के ही फिर यहाँ पहुँच गए। ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ 2013 ਚ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਰੱਖੇ ਕਿ ਐਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ, एज एक वुमेन एंटरप्रेन्योर एक्सेल करना है, क्योंकि चैलेंजेस आई एम श्योर बहुत रहे होंगे? जी, अब बेसिकली इस फील्ड में आने का सबसे बड़ा कारण ये था क्योंकि मैं बहुत सारे बीमार लोगों को देखती थी जो ठीक नहीं होते थे, तो कहीं ना कहीं ये क्यूरियोसिटी ज़रूर माइंड में रहती थी कि ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पर्सनली आज भी लगता है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, अगर हम ठीक करने पे आए तो हम काफ़ी तरह के पेशेंट्स को ठीक कर सकते हैं। और आप कभी भी ऐसे मरीज को देखिएगा, मतलब जो काफ़ी बीमारी से ग्रसित है, वो उस बेचारे के लिए तो ये दुनिया ही नर्क है। वो मतलब अगर एक माँ बाप के पास एक बच्चा ऐसा है जो बीमार है, तो वो तो नर्क में ही जी रहे हैं कि वो कहीं से ठीक ही नहीं हो रहा। और हम कहीं ना कहीं किसी को तो देखो इनिशिएशंस लेना चाहिए कि क्यों नहीं हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता है। रॉकेट साइंस आज क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल रही हूँ, जिनकी वो बहुत बड़ी कंपनी है, मंगलियम, एलन मस्क, वो वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो हम एक बीमारी नहीं ठीक कर सकते, ये क्या बड़ी बात है। ठीक है, कुछ समझ आती हैं कि कुछ नहीं हो सकती हैं, लेकिन 90 ग्रुप ऑफ डिजीजेस देखें तो क्यों नहीं क्योरेबल, क्यों नहीं है क्योरेबल, होनी चाहिए ना, क्यों नहीं होनी चाहिए। मैं शुरू च स्टीव होना का जिक्र किया सी, डायरी ऑफ अ सीईओ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿਤਾਬ 'ਚ
ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੌਨ ਦੀ, हम्म। ਤੇ ਜੋਗਿੰਗ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਰੁਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂਗਾ। जी ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚਿੱਪ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਐਲਨ ਮਸਕ ਸੀਗਾ। जी ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਐਲਨ ਮਸਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਹੈ। हाँ ਜਦੋਂ बिल्कुल ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਐਲਨ ਮਸਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ हो ਯਾਰ, सकता है। ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਚਿੱਪ ਲੱਗ ਜੇ। जी जी ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹੋ हाँ ਸਕਦਾ ਹੈ। बिल्कुल बिल्कुल ਨਿਊਰੋ ਲਿੰਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਨੇ ਜੀ, ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ। ਲੋਕ, ਬਲਾਈਂਡ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਚਿਪ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਐਨਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। जी 2040 ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਣੀ ਹੈ, जी ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਉਹ देखी ਬੰਦਾ नहीं ਵੀ ਦੇਖ ਸਕੂਗਾ। बिल्कुल। अब देखिए कितनी बड़ी होप दे रहा है एक इंसान एक को ना, पूरी दुनिया को दे रहा है। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੋਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਨੂੰ ਐਲੋਪੈਥੀ ਜੀ, ਤੋਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। जी ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 1 ਤੋਂ 2 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ। ਇਸ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਐਜ਼ ਅ ਫੀਮੇਲ, ਐਜ਼ ਅ ਵੂਮਨ, ਇਹ ਚੈਲੰਜਸ ਕੀ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ? मैं ना जब जॉब करती थी, इट वाज द ईयर ऑफ 2010 या 12 के बीच बीच में आई वाज इनटू जॉब यही लुधियाना में। उस टाइम पे ना मेरे पास एक छोटा सा बच्चा आया, कोई किसी को लेके आया, मेरे ख्याल से वो होगा 4 या 5 साल का या 6-7 साल का, इतनी की एज होगी उसकी। तो उसको वो लेके आए, तो जब वो इतना चल नहीं पा रहा था, वो लेके आए, और उस टाइम पे तो मैं कोई इस लेवल की बहुत बड़ा डॉक्टर भी नहीं थी, ना ही मैं इतने बड़े लेवल पे कोई करती थी, क्योर करती थी, पता नहीं भगवान ने भेजा होगा शायद। तो वो एक पेशेंट मेरा ठीक हुआ था, तो वो उनको आगे से आगे वो उनको लेके आए बच्चे को। वो बच्चा चल नहीं पा रहा था, तो वो बच्चा ना बैठ के घिसट के आया मेरे पास। ये इतने 2010 या 12 के बीच बीच की बात है। तो जब मैंने उस बच्चे को देखा, अच्छा उसके फादर वो मेरे ख्याल से यूपी बिहार टाइप में जो भी हमारे पास यहाँ पे लेबर जॉब कोई कर रहा होगा उनका बच्चा था। तो जब मैंने उस बच्चे को देखा तो उन्होंने मुझे बोला कि मैडम मेरे बच्चे को ना बचा लो आप। मैंने कहा क्या हुआ है इसको? तो वो कहते कि मैंने ना दुनिया का कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, मतलब मैंने लुधियाना क्या हर हॉस्पिटल में लेके गया, मैं पीजीआई भी लेके गया, मैं इधर भी लेके गया, मैं सारी जगह लेके गया, और सब इसको बुखार आता है और सब इसको ड्रिप चढ़ा देते हैं, और फिर ये उसके बाद ये कहते हैं अब ठीक हो गया तो ले जाओ। तो जैसे 4-5 दिनों बाद ये फिर वैसे ही, अब अच्छा बिल्कुल हेल्दी बच्चा था, खेलता था, कूदता था, पता नहीं क्या हो गया, और अब ये घिसट के चलता है ऐसे। तो जब मैंने उसको प्रॉपरली, मैंने उस बच्चे के ना सारे कपड़े उतरवाए उस टाइम पे, तो मैंने देखा कि चलो मैं देखूं तो सही इसको हुआ क्या, ये क्यों ऐसे ये चल रहा है। तो उसको नोट करते करते ना मैंने उसकी थाई नोट की एक, वो थाई जो थी वो अंदर मतलब बाहर से देखने में नॉर्मल लग रही थी, लेकिन लाली थी उसमें बहुत ज़्यादा। तो मैंने उनको पूछा कि आपने कोई प्रॉपर इलाज नहीं कराया? कहते हमने तो बड़ी जगह, मतलब मैं पिछले 1 साल से भटक ही रहा हूँ, मेरे पास जितने पैसे थे सब लग गए और कुछ नहीं हुआ, इसका इलाज ही नहीं हुआ। आप यकीन नहीं करोगे, तब मैं आयुर्वेदिक दवाइयाँ बहुत कम देती भी नहीं थी, जस्ट ऐसे ही। तो मैंने उसको फर्स्ट टाइम रेमेडी एक बताई, मैंने कहा देखो इस बच्चे को मैं ठीक कर दूंगी, लेकिन जो मैं बोलूँगी वो तुम करोगे इसको। कहते मैं कुछ भी करूँगा, मैं इसको आप ठीक कर देना। मैंने कहा जो होगा डरना मत उस चीज़ से। तो मैंने उसको बोला कि तुम घर पे ये रेमेडी करके आना। अभी मैं नहीं बताऊँगी क्योंकि खुद ही लग पड़ेंगे लोग करने, वो तो वो मैं चाहती नहीं। मैंने कहा तुम घर पे इसको करना, 7 दिनों के बाद मेरे पास लेकर आना, 7 दिनों के बाद मैं इसको देखूँगी और फिर मैं करूँगी। 7 दिनों के बाद वो मेरे पास लेके आया बच्चे को। 7 दिनों के बाद उस बच्चे को, हालांकि मैं इस तरह के एक्सटर्नल प्रोसीजर नहीं कोई भी करती, लेकिन उस टाइम पे मैंने, जहाँ पे मैं जॉब करती थी, मैंने उसको माइनर सा उसका सर्जरी की बच्चे की, और आप यकीन नहीं करेंगे मैंने 1.5 लीटर पस निकाली उसकी थाई से। और जैसे वो पस निकलने दो, 1 हफ्ता बाद में वो सारा जख्म सूख गया, उसके बाद वो बच्चा ठीक। तो वो बच्चा मेरे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बन गया कि
ऐसे कितने लोग हैं जो जिनका राइट डायग्नोसिस नहीं होता और भटकते रहते हैं और इतना लाखों रुपए खराब कर देते हैं, और मैंने तो उससे पैसे भी नहीं लिए, ना ही मेरी कोई कंसल्टेशन चार्जेस थे उस टाइम पे। जो रेमेडी उसने की वो घर पे की, और क्योंकि मैं चैरिटेबल हॉस्पिटल में काम कर रही थी तो वहाँ से मुझे तो कॉटन ही चाहिए थी बस, वो ड्रेनेज करने के लिए बस। तो वो एक सबसे बड़ा सोर्स था कि नहीं, कि मुझे जो नॉलेज है अगर मैं और इसको अप्लाई करूं बाकी लोगों पे भी, और मैं डीपली इस चीज़ में जाऊं, तो ये चीज़ जो है आगे चल के लोगों का बहुत भला करेगी। ਤਾਂ ਗਿਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆਉਣਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਹੋਊਗੀ। जी, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? मेरे से ज़्यादा मेरे हस्बैंड को हुई है, क्योंकि सारे एफर्ट्स उन्हीं के हैं। मैं तो पेशेंट देख के ही खुश रहती हूँ। जब पेशेंट देखते हैं, ये सारा क्रेडिट उनका है, सारा हार्डवर्क उनका है, लेकिन जो क्यों किया उसका करने का कारण है एक, क्योंकि जैसे आपने शुरू में कहा पॉडकास्ट में कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको मतलब ह्यूमिलेट भी करते हैं आयुर्वेद को, नो डाउट करते हैं कि ये तो स्यूडो साइंस है, ऐसे ही है, कोई एविडेंस बेस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये एविडेंस दिलाने के चक्कर में कि नो नो यू कांट थिंक इन दैट वे, क्योंकि लोगों को अभी लोगों की विजन उस लेवल पे नहीं हुई ना, लोगों ने अभी ऐसे हॉस्पिटल्स विजिट नहीं किया आयुर्वेद के। अगर करने हो तो उनको जाना चाहिए, उनको साउथ विजिट करना चाहिए, उनको सारा ये गुजरात विजिट करना चाहिए, महाराष्ट्र विजिट करना चाहिए। वहाँ पे तो आयुर्वेद इमरजेंसी हैंडल करता है, इमरजेंसी वाले पेशेंट आते हैं और वो आयुर्वेद से उसको क्योर करके भेजते हैं। और एक तो आई एम श्योर कि आपने भी सुना होगा कि एक कंट्री के जो राष्ट्रपति थे उनकी बच्ची की विजन लॉस्ट हो गई थी, वो आयुर्वेद के साथ वापस आई है। स्पेसिफाइड हॉस्पिटल है जो आइस पे वर्क करता है, मे बी इन केरला और तमिलनाडु ऐसी जगह पे है वो साउथ में। तो उस चीज़ को ऑथेंटिसिटी देने के लिए वी वेंट इन दैट सॉर्ट ऑफ हार्ड वर्क। तो हमने इस चीज़ को अचीव करने के लिए प्रयास किए कि लोगों को विश्वास हो। देखिए आयुर्वेद एक नुस्खे वाली साइंस नहीं है, नुस्खा इट्स नॉट साइंस, और वो एक अलग से ठीक है, होम रेमेडीज़ हैं, किसी को सूट करती हैं नहीं करती हैं, लेकिन यू कैन नॉट कंपेयर कि नुस्खे इज़ इट्स एविडेंस बेस्ड साइंस नहीं बन सकती ना, और हमें बनाना भी नहीं चाहिए। आयुर्वेद एक अलग ही एक डायरेक्शन है, मच मोर इक्वलेंट टू एलोपैथिक वी कैन से, ठीक है। एलोपैथी के अपने एक परसेप्शंस हैं, वो बहुत अच्छा करते हैं इमरजेंसी केयर में या सारी चीज़ों में, लेकिन अगर उनकी लिमिटेशंस हैं देन दे मस्ट कोप अप विद अस कि और इसके लिए मेरे ख्याल से दिल्ली में एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, अभी कोविड के बाद उन्होंने बहुत अच्छे एफर्ट्स लिए, मे बी आई गेस मेदांता या ऐसा कुछ शायद, उनके जो ऑनर हैं वो बहुत अच्छे सर्जन हैं, और उनका एक बहुत बड़ा इनिशिएशन है, उन्होंने R&D स्टार्ट की है आयुर्वेद के ऊपर, एंड ही स्पीक्स वेरी वेल अबाउट आयुर्वेद। तो आप ये देखिए इतने बड़े लेवल के अगर डॉक्टर, एलोपैथिक सर्जन, और ये अगर वो प्रेज कर रहे हैं देन इट मस्ट बी हैविंग समथिंग ना। अगर आपको लगता है कि ठीक है मैं तो एंटरप्रेन्योर हूँ कि मुझे तो अपना ही बेनिफिट देखना, अगर आपको ऐसा फील आता है तो आपको वो चीज़ों को भी सोचना चाहिए कि वो क्यों कर रहे हैं, बिकॉज आई डोंट हैव एनी कनेक्शन टू देम। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਸ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕੰਮ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਘਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਘਟਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਊਗਾ। ਹਸਪੀਟਲਸ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। जी मैं एग्जैक्टली ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ बुरी लगी होवे। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने आपको जैसे स्टार्ट किया, मे बी व्हेन वी वर हैविंग पर्सनल टॉक्स उस टाइम पे भी मैंने बताया मेरी तो प्रेयर ही यहाँ से स्टार्ट होती है। आई ऑलवेज विश कि मेरे सारे पेशेंट ठीक हो जाए। अब इसका बाई प्रोडक्ट क्या है, सारे ठीक हो जाए तो कोई भी नहीं आएगा ना, मतलब वैसा तो वैसा ही हुआ। बट फिर भी ये देखिए इट्स नॉट कि मेरे फाइनेंसेस यहाँ से चलते हैं, मेरे पास और बिजनेस बहुत है काम करने के लिए। पैसा पैसा मोटिव नहीं है। पेशेंट को, एक छोटे बच्चे को ठीक करके, एक बुजुर्ग को जिसको कोई देखना नहीं है, मतलब आप ये इमोशनल हो जाने हो। हाँ हाँ बहुत बार। एक तो मेरे पास बुजुर्ग बाबा जी आए थे, वो इतना गुस्सा कर रहे थे ना, और मैंने लिटरली कुर्सी पे बैठे थे, मैंने पीछे से जाके उनको जफ्फी डाल दिया। कहा बाबा जी शांत हो जाओ, रश ज्यादा हैगा। अच्छा गुस्सा ਤੁਸੀਂ क्यों गुस्सा हो गए? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਉਂਦੇ ਆ, वो पाठ करते आ के उत्थे। जी जी, ये देखिए हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। आज से 4 साल पहले मॉडल टाउन में एक बुजुर्ग हमारे पास आते थे, बाबा जी, मुझे नाम नहीं ज़्यादा याद नहीं रहे थे।
नानकसर वो जाते थे, वहाँ पूजा पाठ करते थे अपना जो भी है। उसके बाद वो किसी बीमारी के साथ हमारे पास आ रहे थे, शायद घुटनों की दवाई ले रहे थे, तो 1 से 2 साल वो लगातार आते रहे। लेकिन जिस दिन पहले दिन आए ना, उन्होंने पहले दिन ही कह दिया था कि बेटा बीबा मेरे को ना पैसे नहीं हैगे ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ। मैं क्या कोई गल नहीं बाबा जी, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ हो गया। और आप यकीन नहीं करोगे, उस टाइम पे हमारी ओपीडी भी पता नहीं 10 15 20 पेशेंट की ओपीडी होती थी। मैं क्या कोई गल नहीं बाबा जी, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। मैं क्या ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ। कि कहते ठीक है, मैं ना तुसी दवाई मैनू दे दो तो मैं इत्थे बैठ के फिर घंटा पाठ करके जाऊँगा। मैं क्या ठीक है, तुहाडी इच्छा हैगी। वो बाबा जी ने जदों जदों आना, उन्होंने दवाई लैनी, उन्होंने घंटा बैठ के उत्थे पूरा सिमरन करके जाना। तो मैं हैरान हूँ कि हमने ऐसी ब्लेसिंग के साथ बहुत मल्टीप्लाई किया है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग। और ये मेरे लिए नहीं, मेरे काफ़ी डॉक्टर्स ऐसे हैं जो मेरे पास जॉब करते हैं, बट स्टिल कई बार उनको लगता है ना कि कोई गरीब आ रहा है या पेशेंट या जिसको हेल्प करनी चाहिए, वो मुझे बिना बताए वो खुद की सैलरी से उसके एक्सपेंसेस देते हैं। इट्स अ बिग ब्लेसिंग फॉर अस। और इससे ज़्यादा खुशी की कोई बात मतलब मेरे लिए तो पूरे होल यूनिवर्स में नहीं है कि कोई पेशेंट ठीक होकर जाए। मेरे लिए यही सबसे बड़ी, आई एम ऑलवेज इन अ ब्लिसफुल स्टेट कि मैं इस पैथी में आई और इसके साथ पेशेंट ठीक हो रहे हैं, और हो रहे हैं तो ठीक है। मेरे लिए सबसे मतलब पुण्य वाली वही बात है कि ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡਲ ਕੌਣ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? किस चीज़ को लेके? बहुत सारे हैं ऐसे तो। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਆਈਡਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਝੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ जी। ਜੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, जी ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਢਿੱਲਾ ਕਰਦਾ। जी जी ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ? फिर एक नहीं है, मेरे पास तो बहुत सारे हैं। मैंने हर कुछ चीज़ें हर किसी से सीखी हैं। जब मैं जॉब करती थी तो मेरे जो वहाँ पे डायरेक्टर थे, ही वॉज DIG इन आर्मी, रिटायर थे, तो उन्होंने बाद में वो हमारा हॉस्पिटल को पूरा लीड कर रहे थे। तो जब मैं जॉब करती थी तो कई बार जॉब करने वाले एम्प्लॉयज़ की मेंटालिटी होती है, उनको फालतू में गुस्सा आता है। तो हमें ये उस टाइम पे ये सोचती कि ये तो कुछ भी नहीं करते, गाड़ी में बैठ के आते हैं, 2 घंटे बैठते हैं, चले जाते हैं, कुछ भी नहीं करते, एंड ही इज़ अर्निंग एंड ही इज़ हैविंग ऑल दैट फैसिलिटीज़ लाइक ड्राइवर, कार, ये वो सो। पर उनसे जो मैंने चीज़ देखी और सीखी, शायद मुझे लगता है कि मुझे MBA वाले नहीं सिखा पाएंगे, जो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ से सीखा कि वो किस तरह से वो उस चीज़ को, उनका नाम है DIG सुदर्शन शर्मा, अब वो दुनिया में नहीं है, श्री शांता कुमार जी के ब्रदर थे। तो उन्होंने मुझे एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रांगली सिखाया। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि मैंने आयुर्वेद ज़्यादा कहाँ से सीखा, तो मैंने अपनी दादी से सीखा, क्योंकि उनको हर्ब्स का बड़ा शौक था। वो शी वॉज अस्थमेटिक, तो हम जंगल में जाके हिमाचल में बनक्शा नाम की जड़ी बूटी मिलती है, तो हम वहाँ से लेके आते थे। तो शी यूज़ टू प्रिपेयर डिफरेंट टाइप ऑफ डिकॉक्शंस, बुखार हो गया ये ले लो, ये हो गया ये ले लो, तो उसके साथ ही हम लोग ठीक हो जाते थे, क्योंकि इतने साल पुरानी बात है, तो वहाँ पे उस लेवल की फैसिलिटीज़ नहीं थी हम लोगों के पास पहाड़ों में। अब अगर आगे चले जाएं बिजनेस पे देखें तो देखिए, मैं ऐसी इंसान हूँ, मैं हर किसी से सीख लेती हूँ। अब आपको ये भी नहीं पता होगा कि शायद आपसे क्या सीख लिया ऐसे मैंने नरेंद्र मोदी हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा, एलन मस्क से बहुत कुछ सीखा कि कुछ भी सोचो और उसको कर दो। और सबसे बड़े आइडल अगर बिजनेस के बारे में आप मुझसे जानना चाहें तो रतन टाटा जी हैं। कि मुझे ये लगता है, मुझे हमेशा उनकी एक कोट हमेशा याद रहती है कि कोई बात नहीं, कोई भी डिसीजन ले लिया ना, डिसीजन गलत और अच्छा नहीं होता, बस ले लिया, अब उसको सही करके दिखाओ। क्योंकि जब इंडिया में उनके जो दादाजी थे श्री जमशेद जी, इंडियन आर्मी में बहुत साल पुरानी बात है, जब बीमारी फैल गई थी तो उन्होंने सबसे पहले जो सोप है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। मुझे साबुन का नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन सोप इंडस्ट्री जो लेकर आए, और वो यही कि इन्फेक्शन के कारण काफ़ी जवान मारे गए थे, तो उस टाइम पे उन्होंने इनिशिएशन लिया। उसके बाद रतन टाटा जी का हमेशा यही फिलॉसफी रही है कि जो मेरा कंज्यूमर है, मतलब जिसको मैं जो चीज़ दे रहा हूँ, बेच रहा हूँ, या मैं फैसिलिटी दे रहा हूँ, या मैं सर्विस दे रहा हूँ, सबसे पहले सेटिस्फाई वो होना चाहिए। उसके बाद हमारी बारी है, उसके बाद मेरी टीम की बारी है, लास्ट में मेरी बारी है। तो सेम मेरे साथ भी ऐसा ही है। ਡਾਕਟਰ शारदा बहुत ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਖਾਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ,
ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੂਗੀ ਜੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।